Let me take a moment to introduce our guest for today. So we have Kundan with us, and he's known by his handle name is Price, Precision, and Perseverance. Very peculiar name and very relevant as far as market is concerned. Price is something which is prime, right? And precision is required so as to get a good pick, right? And perseverance in the market is the biggest tool one can have. So a very warm welcome, Kundan. Hello, hello Yeah, Kundan. everybody. Hi, Prince sir, and hello everyone who have came to attend this session. So, let me introduce first of all myself. My name is Kundan. I have been doing my right now masters from Delhi School of Economics and been graduated from Shriram College of Commerce in 2020, and been trying to be in trading in the markets from past 3.5 years. So, this has been my journey and how I've been taking new steps to learn every day, and I'll be sharing a lot of things in the session. So definitely we'll be starting with some of the things that the topic is about, how to pick winning stocks. So मैंने लास्ट सेशन में वेल सर का भी एक क्वेश्चन सुना था. सर व्हाट इज योर नेम सर, सो दैट आई कैन जस्ट कॉल यू बाय योर नेम. क्या आपका नाम? हेलो. Yeah, Kundan, you can refer Sir by Vajpayee, sir. वाजपेयी जी, ओके ओके. सो वाजपेयी सर, आपका एक क्वेश्चन सुना था मैंने कि आपने लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ टू स्पॉट trade like or a stock like what was the name of the stock? I just Sharda Cropchem. Yeah, Sharda Cropchem. You remember sir? You have asked कि शारदा क्रॉपकेम जैसे स्टॉक को हमें ये कैसे पता चल सकता है कि ये स्टॉक 6 महीने बाद या 8 महीने बाद ब्रेकआउट देने वाला है और इतना बड़ा विनर बनेगा, राइट? So the space is all about how to spot these big winners in advance and how to look at the price action in a very unique way, in a very like a different way that most of us use technical analysis while analyzing any stock in the sense of predicting it. Like अगर हम कभी भी टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं किसी भी स्टॉक को यूज़ करने के लिए, तो हमारा सबसे पहला एक फर्स्ट स्टेप ही होता है उसको एनालाइज करने का कि हम इसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे कुछ ना कुछ. बट द आइडिया शुड बी कि हमें रीड करना है, प्राइस को रीड करना है, व्हाट द प्राइस इज टेलिंग मी टुडे. अगर आज मुझे प्राइस ये बता रहा है कि हाँ पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कुछ स्ट्रेंथ है, आई कैन एक्चुअली grab that strength, और एक कंटिन्यूशन बाइंग आने वाला है, इफ आई कैन अंडरस्टैंड दैट कंटिन्यूशन बाइंग इन एडवांस through the ways which I will be sharing in this space, so I can view a like I can build a particular view about the stock but not a hope कि मेरे को उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना कि हाँ ये यहाँ से 100% विनर बन जाएगा या 200% विनर बन जाएगा, बट विद द आइडिया कि आई हैव टू टेक दिस ट्रेड बिकॉज ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंगली चल रहा है, ठीक है. इन माई सेटअप इट इज़ गिविंग मी अ काइंड ऑफ गुड एंट्री पॉइंट एंड विद द एंट्री पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू कि एंट्री पॉइंट क्या होता है. एक एंट्री पॉइंट लाइक द मोस्ट ऑफ द पीपल आर बाइंग द स्टॉक्स रैंडमली, किसी दिन भी बाय कर लेते हैं या कोई भी स्टॉक 20% चल जाता है तो बाय कर लेते हैं, ठीक है. बट आर दीज मूवमेंट्स और आर दीज हैबिट्स ऑफ कैचिंग द स्टॉक्स इन सच प्लेसेस इज अ गुड थिंग और नॉट? सो वो भी डिस्कस करते हैं. So I just want to discuss all these things with some questions actually in the beginning so that I can actually grab the nerves of the people who what they really want to know, and then I will keep adding the points ki, okay, how to add these pointers to your analysis and how to learn from my learnings which I'll be sharing in the session going forward. So please ask me some questions about the certain things, and then we will be continuing this space with the learnings of the how to pick winning stocks, because there will be something to start with, and I want to start with some of the questions first, because so that I just know that okay audience को क्या चाहिए today in the today's session. I'll be sharing the picking how to pick the winning stocks strategies and everything, all the methodologies. But just to start with, do ask one question, any question. So Princess, just ask the audience to ask any question if they want in the beginning about Right. any price, and so that I just know that okay this is the level of the understanding of the price action right now with the people, and I can just grow up on that.
Yeah, we'll come to that, Kundan. Like initially, would appreciate if you tell us like how it started for you and the Okay. learning curve which you, I mean, for last, I mean, your marketing journey throughout your journey. How has been your learning curve? And yeah, How after has that been my we'll take learning curve? questions. Okay, okay. So, like in the initial days, I've been just into the fundamental investing because trading was a sin. As सुनने में जो आता था हर तरफ से कि भाई ट्रेडिंग नहीं करना वरना पाप लगेगा मार्केट में, क्योंकि ट्रेडर तो जुआ है या फिर ट्रेडिंग खराब चीज़ होती है। और फिर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ये सुनने को मिलता था हमेशा कि ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस तो भाई ये जन्म कुंडली दिखा लो, पत्री दिखा लो, या फिर आप लोग एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स रीड करवा लो, उसी जैसी है टेक्निकल एनालिसिस भी। सो आई थिंक जितना पब्लिकली इस चीज़ को डिमीन किया जाता है या फिर उतना डिजर्व नहीं करता टेक्निकल एनालिसिस। हालांकि जिसका आई थिंक कि जो लोगों के पीछे ना जो ये विचारधारा चल रही है कि मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस बेकार है, तो आई थिंक फ्रॉम द पीपल दे आर लर्निंग फ्रॉम, और द वे दे आर लर्निंग फ्रॉम, वो जो एटीट्यूड के साथ सीख रहे हैं वो गलत है। और द पीपल्स हु आर टीचिंग देम दिस टेक्निकल एनालिसिस अप्रोचेज आर रियली बैड थिंग्स। सो शायद से इस वजह से लोगों को ये बहुत ही एक तरह से बेकार लगती है कि टेक्निकल यार काम नहीं करता होगा, या फिर इस तरह का किसी के पास सेल्फ बिलीफ ही नहीं बन पाया आज तक टेक्निकल में। सो मेरी जर्नी ये इस तरह से चली कि मैंने हाउ हाउ आई हैव लाइक just learned into the fundamentals and how the market cycle changed and how I keep on learning over the period of time. So उसके अंदर मेरे को काफ़ी अच्छे mentors मिलते गए, जहाँ पे मैंने ये learning मेरी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई कि मार्केट के अंदर देर इज़ नो वन वे टू रीच द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू रीच। तो वो सिर्फ फंडामेंटल ही वे नहीं है, एंड आई थिंक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई वॉन्ट टू डू फास्टली, लाइक बहुत सारी चीज़ें मैं जल्दी अचीव करना चाहता था। एंड फंडामेंटल्स के बाद में मेरे को फिर ये समझ में आया कि फंडामेंटल का बेसिक रूट ये है कि हम पहले से एक परसेप्शन के साथ और एक होप अपने साथ एक जोड़ लेते थे। ठीक है, वेयर डू आई सी कि अ लॉट ऑफ पीपल विद एक्सपीरियंस इन फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, they actually try to ignore those hopes and avoid those hopes actually। तो शायद से मैं उतना एडवांस लेवल पे नहीं जा पाता था, उतनी उतनी जल्दी नहीं जा सकता था क्योंकि इतने ज़्यादा गाइडेड रूट्स नहीं थे। सो लकीली आई जस्ट got to know about Mark Minervini sir, and these are the traders of US championships and US traders actually। सो मार्क मिनरवी सर एंड विलियम ओनील के बारे में पढ़ा और उनकी बुक्स को रीड किया। सो वहाँ से मुझे काफ़ी सारी लर्निंग्स मिली, एंड देन लेटर I met a lot of people around me who were trading the same systems and setups। So उनके एक्सपीरियंस से बिल्डअप हुआ मेरा काफ़ी सारा सेल्फ एफिकेसी बिलीव्स बिल्डअप हुई, जहाँ से मुझे ये समझ में आया कि हाँ आई कैन एक्चुअली मेक माई ओन सेटअप्स। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है सब कुछ। ठीक है कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो लोग सोचते हैं कि हाँ यार सिर्फ हम लोगों की साइकोलॉजी खराब है, मार्केट के अंदर माइंडसेट होना चाहिए और ये सब। माइंडसेट इज नथिंग। लोग क्या मिस कर रहे हैं, लोग आज के टाइम पे जो मिस कर रहे हैं वो मिस कर रहे हैं कि मैं एंट्री कहाँ पे लूँ, उस एंट्री के बाद मैं उसको मैनेज कैसे करूं, और किस में एंट्री लूं सबसे पहली बात तो। ठीक है, हाउ टू पिक द स्टॉक। तो इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए अगर आप सिर्फ माइंडसेट्स के ऊपर काम कर रहे हो ना, आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं है कि आप जो एक्शन लेने के जा रहे हो उसके बाद आपके क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, क्या एसओपीज आप फॉलो करोगे। ठीक है, वो सब आपके पास कुछ भी नहीं, और आप सोच रहे हो कि सिर्फ माइंडसेट अगर मैं अपना इंप्रूव कर लूँगा और उससे कुछ बन जाऊँगा मार्केट के अंदर, आई विल अचीव समथिंग। नथिंग इज गोइंग टू कम टू यू माई फ्रेंड्स। तो सच में ऐसा कुछ नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्राइस एक्शन फ्रॉम द पास्ट विनर्स। जो प्रीवियस विनर्स हैं आपके, उन्हीं से आपको नई स्ट्रेटजीज मिलेंगी, उन्हीं से ही आपको लर्निंग्स मिलेंगी कि आने वाले जो मार्केट के अंदर विनर्स होंगे वो कैसे दिखेंगे। ठीक है, तो दिस हैज़ बीन माई जर्नी प्रिंस भाई, एंड All right, देन Kundan. आई बिगिन। So we have one speaker. So Vaibhav, you can quickly unmute and ask your question. Vaibhav, you there? Okay, anyway, Kundan, so basically ओके you ओके, talked about price action, right? So यस। can you tell the attendees with an example like how, I mean, say if you have to generate a particular idea, what would be your, I mean, how you go about it? Is there any system in place which tells you that, यस yeah, यस, देर इज़ अ yeah, सिस्टम। सो लेट मी डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिस्टम होता क्या चीज़ है। ठीक है, एक सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सिस्टम के पार्ट्स होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि आप किस टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करना चाहते हो। ठीक है, एंड ट्रेड से मेरा मतलब ये नहीं कि सी एवरी इन्वेस्टर इज ऑल्सो अ ट्रेडर। एनीथिंग यू बाय यू जस्ट हैव टू सेल वन डे। इट्स जस्ट कि मैं थोड़ा जल्दी बेच देता हूँ, शायद से मैं महीने भर में या फिर 15 दिन में या फिर 2 हफ्ते के अंदर बेच देता हूँ।
ठीक है, किसी स्टॉक को आप लोग शायद से 2 साल में बेचोगे, ठीक है, हो सब के सब ट्रेडर, बट वो टैग्स लगा लिए सभी ने, अवॉइड दिस टैग्स गाइज, ठीक है, टैग्स मत लगाओ अपने आगे पीछे, ट्राई टू इम्प्रूव, जितना इम्प्रूवमेंट आ सकती है विद एनी पर्टिकुलर रूट यू आर फॉलोइंग, तो उसके अंदर आप एड ऑन कर सकते हो। सो आपका क्वेश्चन था प्रिंस भाई कि मैंने लाइक व्हाट आर द एग्जांपल्स व्हिच आई कैन कोट, राइट? Yeah, examples like how you screen and how you go about it. यस। सो सिस्टम के अंदर सबसे पहले मैंने जो बताया कि टाइम फ्रेम पहले अपना डिसाइड करना है। सो माय टाइम फ्रेम इज डेली टाइम फ्रेम, ओके, बट व्हाइल एनालाइजिंग द स्टॉक आई गो फॉर वीकली ऑल्सो। सो मैं वीकली के अंदर भी चार्ट्स को स्टडी करता हूँ, बट आई टेक द एंट्री ऑन डेली टाइम फ्रेम। आई डोंट लुक देम इन इंट्राडे, आई डोंट डू इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है वो मैं समझाता हूँ आपको। स्विंग ट्रेडिंग से मेरा तात्पर्य ये है कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर कमिटेड बायर्स हैं, कोई भी जो बायर्स हैं वो कमिटेड हैं, दे आर गोइंग टू स्टे फॉर सम टाइम, they are not going to leave the stock for just mere 20-30% move. So after a stock gives a push of 20-30% or whatever the push it is, if that push looks to me is a strong push, so उसके बाद मैं जो देखता हूँ स्टॉक के अंदर, जो एज्यूम करता हूँ कि उस स्टॉक के अंदर एक कंटिन्यूशन बाइंग आएगी। सो उस कंटिन्यूशन बाइंग के अंदर दैट स्टॉक विल रीच अ न्यू हाई। सो ऑन दैट न्यू हाई फेज आई विल बुक माई प्रॉफिट्स, एंड मेरा वो सिस्टम मेरे को एक एंट्री देगा जिसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी एक डिफाइंड स्टॉप लॉस होगा, एक डिफाइंड मेरे पास अपने एंट्री रूल्स होंगे कि मेरे को किस तरह से उसके अंदर एक्सपोजर लेना है, हाउ मच साइज आई हैव टू ऐड इट, वेदर दैट बेस इज गुड इनफ टू बी लॉन्ग इनफ, लाइक इज गुड इनफ टू बी long in a like really good size, or I have to take the entry in a scattered way, or the very first I have to put the entire money which I have to allocate in it. So the size about it. So a system tells you about the allocation, the frame of your trading, how you will book the profits, that is also written in your system, how you will manage your trade after the stock is given a breakout. So breakout doesn't mean that today the stock has given a 10% move or 20% move. Breakout means that there are some continuation is happening in that breakout. The breakout should not be just giving one day breakout and next day giving up the gains. So the buyers who have came actually that day should actually defend their positions in the market. So all these things should be there while seeing in the price action. So this is what the system goes about. So yes, so सिस्टम का मैंने ये एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी स्टॉक के स्पेसिफिक में, आपने पूछा तो मैं एक स्टॉक के स्पेसिफिक में देता हूँ आपको। अगर हम लास्ट एग्जांपल ही देखा जाए तो शारदा क्रॉपकेम सर ने पूछा था एक बार कि शारदा क्रॉपकेम आई थिंक 3 अगस्त 2020 से लेके 10 जनवरी तक एक रेंज बाउंड मार्केट में था वो, ठीक है, रेंज बाउंड था, मतलब व्हाइल द मार्केट वाज ग्रोइंग बट द स्टॉक वाज नॉट मूविंग अप, बट एट द सिमिलर टाइम सडनली क्या हुआ कि मार्केट गिरने लगा, ठीक है। ये है टाइम आई थिंक 10 जनवरी से, 10 जनवरी से और आपके लगभग 4th of October till 10th of January of 2022 एंड 11th of October of 2021, यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट हमारा जो जनरल मार्केट है यानी स्मॉल कैप इंडेक्स और द निफ्टी यू कैन टेल, वो बहुत ही स्टैग्नेंट हो गया था, ठीक है। इट वाज नॉट मेकिंग न्यू हाइज, इट वाज जस्ट गोइंग अराउंड, एक सिर्फ वो प्राइस मूव कर रहा था, एक तरह से रेंज बाउंड हो गया था, मार्केट एक अपना हाई ऑलरेडी अचीव कर चुका था, उसके बाद मार्केट वाज नॉट गोइंग फॉर फर्दर हाइज, इट वाज जस्ट मूविंग अराउंड द नियर द हाइज एंड नॉट फॉलिंग आल्सो। बट वहीं पे हम देखते हैं कि शारदा क्रॉपकेम उसके अंदर कंटिन्यूसली हायर हाइज बनते जा रहे थे, ठीक है। So these higher highs will actually tell you कि on every bad day what is the market, what is your particular stock is doing. If on a very bad day stock is not falling, that is a relative strength. But that relative strength doesn't give you hope कि ये अब यहाँ से गिरेगा नहीं, ठीक है, कोई भी चीज़ वो गिरेगी नहीं, maybe it can fall in the coming days, but when the market cycle changes or the direction of the market changes, तो मैंने यहाँ पे अभी एक डायरेक्शन की बात करी, मार्केट डायरेक्शन की, तो सिस्टम के अंदर एक बहुत पर्टिकुलर बात है कि हम कभी भी कोई भी ब्रेकआउट बाय कर रहे हैं, वी आर ओनली बाइंग देम ऑन द बेसिस ऑफ एंड द जनरल मार्केट पार्टिसिपेशन इज रियली गुड। तो जनरल मार्केट पार्टिसिपेशन हम कहाँ से जानते हैं? सो यू विल सी ऑन माई हैंडल और इन मैनी पीपल्स हैंडल हु आर ट्रेडिंग जस्ट लाइक मी
कि हम लोग मार्केट ब्रेथ को एक फॉलो करते हैं, एक सिस्टम है मार्केट ब्रेथ का जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि आज के करंटली डे में हाउ मेनी स्टॉक्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट मूव्स, इफ द मार्केट इज मूविंग अप और द मार्केट इज मूविंग डाउन. So what is the participation of the stocks in the general market in the direction of the market? So if the market is moving up, I will look at how many stocks are moving up in the markets. So उस जनरल पार्टिसिपेशन से मुझे पता चलता था विद इन द 3 days 4 days ऑफ द लेग अप ऑफ द मार्केट कि हाँ मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन अच्छा है. सो अभी मैंने आपको बताया एज ए स्विंग ट्रेडर आई एम नॉट लुकिंग फॉर द इमीडिएट बाइंग अपॉर्चुनिटी कि मेरे को बस बिल्कुल अभी ही बेस के अंदर बाय कर लेना है. नो, आई एम टेलिंग यू कि मैंने 3-4 दिन वेट किया, 5 दिन वेट किया, मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, ठीक है. सो एज ए स्विंग ट्रेडर बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर अ कंटिन्यूएशन बाइंग, तो मुझे लग रहा है कि अब ये जो ब्रेकआउट आए हैं या फिर अभी जो मार्केट के अंदर एक कंटिन्यूएशन मूव आया है, एक मूव आया है, अपवर्ड मूव आया है फ्रॉम द डाउनवर्ड साइकिल, तो इस मूव को मार्केट कंटिन्यू करेगा. इफ इट इज नॉट कंटिन्यूइंग, दिस इज नॉट माई मार्केट, आई विल स्टे आउट. मैं उसमें नहीं पार्टिसिपेट करूंगा क्योंकि मेरा टोटल गेम ही यही है कि मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे कंटिन्यूएशन बाइंग करनी है, ठीक है. सो अगर कंटिन्यूएशन बाइंग के ऊपर मैं होप लगा के बैठा हूँ, ठीक है, आई एम यूजिंग द वर्ड होप वेरी कॉशियसली है, जनरली होप नहीं होता ये, वो ऑलरेडी आपको एक चीज़ पहले से पता चल गई कि येस मार्केट हैज़ गिवन अ क्लियर डायरेक्शन कि अब यहाँ से मार्केट अपवर्ड जा रहा है. 3-4 दिन गया है, उसके बाद मार्केट जरूर रेस्ट लेगा एंड दिस रेस्ट पीरियड इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. नाउ वी विल गो अबाउट कि मार्केट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और ये जो मैंने अभी लेग अप की बात करी है ये है क्या चीज़. दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर. जनरल मार्केट का स्ट्रक्चर है कि हम कोई भी आप जो भी स्ट्रेटजीज हम बिल्डअप करते हैं वो शायद से जनरल मार्केट स्ट्रक्चर से अगर रिलेटेड है तो इवन द स्ट्रेटजी इज द शिफ्टेड स्ट्रेटजी. इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड इट विद अ वेरी गुड ट्रेड मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम यू विल मेक मनी, ठीक है. अगर वो बिल्कुल घटिया भी स्ट्रेटजी है लेकिन वो मार्केट स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेटेड है, बिल्कुल सिंक में है, तो आपको पैसा बनेगा. सो मार्केट का एक स्ट्रक्चर है कि कभी भी मार्केट ना यूनि डायरेक्शनल नहीं ऊपर जाता या यूनि डायरेक्शनल नीचे नहीं आता. इट एक्सपेंड्स, इट रेस्ट्स, देन अगेन एक्सपेंड्स. एक्सपेंशन कैन बी इन एनी डायरेक्शन, ओके. सो जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का जो ये फेज होता है इसी के बीच में जर्नी है एक स्विंग ट्रेडर की, कि जहाँ पे स्विंग ट्रेडर वो एक्सपेंशन के अंदर खरीदने के लिए नहीं सोच रहा बल्कि एक्सपेंशन को वो अपना बेस बना रहा है कि वो वहाँ से अपने सेटअप के अंदर ये जान सके कि हाँ किस स्टॉक्स के अंदर ऑलरेडी एक कमिटेड बायर है. इफ दैट दोज बायर्स आर कमिटेड दे विल कम एंड कंटिन्यू द बाइंग. So when they will come and continue the buying, they will actually give the breakout of that contraction range. क्योंकि अगर वो उन्होंने एक ब्रेकआउट दिया है उसके बाद वो एक रेस्टिंग फेज में है, सो वहां से एक आपको वापस से ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है. सो मे बी द यंग ब्रेकआउट्स विच आई कॉल अभी रिसेंटली लाइक अगर आप मेरा हैंडल भी देखेंगे तो most of the young breakouts that I have caught, one of them is D-Link, very recent trade of mine, very good trade. It has been 80% mover, although I have not got fully 80%, ठीक है, but I have got a lot of it. So D-Link के अंदर ऐसा क्या खास था D-Link की ट्रेड के अंदर? क्या मैंने उसकी अर्निंग्स देखी? नहीं. क्या मैंने उसके फंडामेंटल्स देखे? नहीं. उसके अंदर एक सिंपल सा था, उसके अंदर एक गैप अप था. वट गैप अप टेल्स यू, गैप अप स्टॉक्स के अंदर क्या बताते हैं, ठीक है. स्टॉक ऑलरेडी पहले से ही एक डाउनवर्ड साइकिल के अंदर था जिसके बाद उसने अपना एक बेस सेटअप किया. सो ऑल दोज थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू मे नॉट बी कि मैं आज ही के दिन आपके साथ कवर कर पाऊँ, बट मैं ये सारी बातें जो पॉइंटर्स बोल रहा हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स विच आई एम यूजिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर हेयर न्यू, ठीक है. आई थिंक आई वॉज लकी बिकॉज मैं इन सिस्टम्स के साथ जल्दी कनेक्ट कर पाया इन अ वेरी यंग एज और अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है इसमें और ग्रोथ करने का. बट मोस्ट ऑफ यू हु आर यंग लाइक मी कैन ऑल्सो लर्न. तो जो ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ इनको जाके आप बुक्स में पढ़ सकते हो, ठीक है, बिकॉज एक घंटे के स्पेस में हम सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे. बट डू राइट दीज टर्मिनोलॉजीज एंड ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज यू विल फाइंड इन द बुक्स लाइक हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट बाय विलियम ओनील, ठीक है, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट्स. Some of the book recommendations that I am going to give in the end of the space, you will find all these things in those books. So let's start again. I was telling you guys कि मार्केट के अंदर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है.
इस फेज को भी समझना बहुत जरूरी होता है व्हाइल यू आर एनालाइजिंग एनी स्टॉक इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। कोई भी स्टॉक को अगर आप एनालाइज कर रहे हो, अगर उसको एनालाइज टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स में आप कर रहे हो और आप उस टेक्निकल एनालिसिस को आप इस टर्म्स में देख ही नहीं रहे कि मार्केट के अंदर एक 20% मूव आ चुका है और फिर भी आप वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्टॉक कल ही फट जाएगा या परसों ही उसके अंदर ही आ जाएगा, तो नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस आर कि स्टॉक विल गो फॉर अ कॉन्ट्रैक्शन फेज, ठीक है। सो अगेन आई विल टेल कि कभी भी अगर आपको कुछ भी नया सीखना है मार्केट के अंदर या फिर स्टॉक्स स्पेसिफिकली कि हाउ टू पिक द विनिंग स्टॉक्स, गो एंड मेक अ लिस्ट ऑफ past 6 months most up stocks, the stocks which have given highest return in the past 6 months or having the highest momentum rankings, ठीक है। इसका आपको डाटा मिल जाएगा मेरी वेबसाइट के अंदर ही, मेरी वेबसाइट नाम टेलिंग मेरे ट्विटर हैंडल पे मिल जाएगा, डाटा मैं डालता रहता हूँ। और यू कैन जस्ट गो एंड सिंपली एक सिंपल सा स्कैनर बनाओ चार्टिंग के अंदर, आई माइट शेयर इट ऑल्सो, और आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। बस आप अपने पास 6 मंथ के स्टॉक्स को पढ़िए, ठीक है, एंड डू दिस एक्सरसाइज एवरी मंथ, then you will know कि even in the bad market ना you get some good swings where you can actually go about making money, ठीक है। all those 6 months का stocks में you will find names like, and all these names I think Prince Bhai have already given a disclaimer कि none of these names are like maybe there will be position of mine or may not be, so there is no recommendation about these names, okay। so though just telling you guys कि don't go and buy them just टुमारो इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये सिर्फ एक प्रीवियस स्टडी है, ठीक है, पास्ट स्टडी है, ये विनर्स हो चुके हैं और हमें इन विनर्स को थोड़ा जल्दी आइडेंटिफाई करना है। सो लेट मी नेम सम ऑफ दिस विनर्स। RVNL इज द फर्स्ट रैंकिंग में, ठीक है। आई थिंक इट हैज बीन अप almost 1 2 3 4 5 6 weeks in a row it is up, okay। how RVNL was there बिफोर द ब्रेकआउट, लाइक उस ब्रेकआउट से पहले आरवीएनएल क्या कर रहा था, आरवीएनएल के अंदर ऐसा क्या प्राइस एक्शन हो रहा था, तो उसको स्टडी करिए। इट वॉज फॉर्मिंग सम काइंड ऑफ अ बेस। बेस क्या होता है? बेस होता है एक्यूमुलेशन फेज को हम बोलते हैं बेस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी से कि इसके अंदर जो बेस बन रहा है एज अ बुलिश बाइसनेस के साथ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अदरवाइज बेस कुड बी अ बेरिश बेस ऑल्सो, ठीक है। सो उस बेस के अंदर आप क्या देखते हैं कि बेस के अंदर क्या एक्यूमुलेशन हो रही है। इफ इट इज विजिबल ऑन द चार्ट्स विद द वॉल्यूम्स, द बाइंग इज विजिबल इन द चार्ट्स द वॉल्यूम्स एंड दोज बाइंग्स विल नॉट बी विजिबल कि आपको वो वॉल्यूम्स सिर्फ ब्रेकआउट वाले दिन ही दिखेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं आरवीएनएल के चार्ट के अंदर, सो अ वेरी गुड बाइंग हैज हैपेंड ऑन 22 अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद से उस हाई को कभी क्रॉस नहीं किया प्राइस ने, एंड वहां से फिर 2021 से लेके अभी अक्टूबर 22 अभी तक स्टॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बेस बन रहा था, ठीक है। उस बेस के पीरियड में अगर आप देखना चाहें, सो आई होप कि सम ऑफ द पीपल आर ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, ठीक है। अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पे हैं तो देखिए कि आरवीएनएल ने उस दिनों में कुछ 72 मिलियन की बाइंग हुई है और 163 मिलियन की बाइंग हुई है ऑन डेली चार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ये है बात है 21 अक्टूबर 22 अक्टूबर 2021 की बातें हैं, ठीक है। ये उसके बाद स्टॉक ने मूव कितना किया है, सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं देखना, स्टॉक का प्राइस मूव भी देखना है, अदरवाइज दिस इज एन एनोमली, ठीक है। वो मतलब फेक है, उसको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। अगर वॉल्यूम आ रहा है और प्राइस मूव नहीं कर रहा, ठीक है, उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट आई थिंक। तो वहां से स्टॉक ने ऑलमोस्ट इन दीज 2 डेज में मोर देन 40% रिटर्न दिया है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक क्या करता है एज ए स्विंग ट्रेडर, मे बी अगर उन दिनों में इस टेप को रीड कर रहा होता तो आई वुड बी थिंकिंग कि हाँ ठीक है 40% मूव आया, इसके बाद एक बेस और बनेगा एंड कंटिन्यूशन बाइंग होगी, आई विल गो एंड बाई इट। बट वहां से स्टॉक के अंदर क्या होता है, स्टॉक के अंदर सेलिंग आती है, विच इज अ बैड थिंग, ठीक है, क्योंकि सेलिंग नहीं आनी चाहिए इतनी ज्यादा। एक नेचुरल रिएक्शन हो सकता है कि स्टॉक ने अपना 20% मूव जो अपना गेन दिया है अभी उसका 20% लूज कर दिया, इन एक्सट्रीम केस 50% लूज कर दिया, बट नॉट मोर देन द 50% ऑफ द मूव्स और द ब्रेकआउट मूव इट हैज गिवन बैक टू द मार्केट, ठीक है। सो मैं देखता हूँ कि स्टॉक के अंदर एक काफी अच्छी सेलिंग आती है और स्टॉक काफी ज्यादा नीचे गिरता है,
तो मैं इसको उस वक्त डिस्क्वालीफाई कर दूंगा और आई विल जस्ट लुक एट इट कि चलो ठीक है इसको लेटर देखते हैं व्हेन इट विल एब्जॉर्ब दिस सेलर्स, ठीक है। बट हियर यू विल सी वेरी इंटरेस्टिंगली कि मार्केट आपका वहां से गिरे जा रहा है, ठीक है। जहां से ये मार्केट इसने टॉप बनाया ना 21 अक्टूबर में, वहां पे लगभग मार्केट ने भी अपना टॉप बना दिया था, उसके बाद मार्केट सिर्फ एक न्यू हाई मार के गया, वहां से सिर्फ गिरावट ही आई है। सो रियल टॉप को आप लोग सोचते होंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक विल थिंक, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि इन जनरल अगर मैं बहुत ही यंग होता जब मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी तो शायद से मैं सोचता कि मार्केट ने टॉप बनाया है 17 जनवरी को, वो भी 2022 के, ठीक है, कि मार्केट ने उस दिन टॉप बनाया। बट रियलिटी में अगर टॉप देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियोज वुड हैव बीन जस्ट स्टॉप ग्रोइंग, कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहे होंगे अक्टूबर में, मिड ऑफ अक्टूबर के बाद से कोई रिटर्न नहीं आ रहे होंगे लोगों के पास, ठीक है। सो इसलिए कई बार बोलता हूं मैं कि मार्केट ब्रेथ देखिए, ठीक है, जनरल मार्केट पार्टिसिपेशन देखिए, कि व्हाइल एनालाइजिंग any portfolio, any stock, anything that you want to analyze in the market, एक जनरल मार्केट का बिहेवियर देखो पहले आपकी क्या है, ठीक है, क्या जनरल मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशंस हो रही हैं या नहीं, ठीक है, तभी तो आपको भी ब्रेकआउट्स मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ गेम है प्रोबेबिलिटीज का। अगर आपके पास कोई होप है कि हाँ नहीं यार मैंने तो सिर्फ ये पैटर्न देख लिया है, इसका तो ब्रेकआउट ही आता है, तो आई कैन शो यू न्यूमरस एग्जांपल्स जहाँ पे उस पैटर्न्स के इतने गंदे वाले ब्रेकडाउन्स आते हैं, ठीक है। सो बिल्ड योर एफिकेसी, डेफिनेटली अच्छी चीज़ है, बट ऑल्सो बिल्ड द राइट अप्रोच टू लुक एट द थिंग्स, ठीक है। सो अगेन आई विल कम टू द टॉपिक ऑफ आरवीएनएल कि हाउ टू स्पॉट अ बिग विनर और विनिंग स्टॉक। आरवीएनएल के अंदर क्या हो रहा था उस वक्त, आरवीएनएल वाज जस्ट consolidating with the market for that period time, then market started falling, RVNL also fall, ठीक है। so market started falling from 17th of January actually, ठीक है, वहां से एक जो लगातार फॉल आना शुरू हुआ है वो हुआ है 24 फरवरी तक, वहां पे भी आरवीएनएल ने अपना एक बॉटम बनाया है, ठीक है। तो वहां से आरवीएनएल ने अपना एक बॉटम बनाया, देन वी विल लुक एट कि ओके ठीक है उसके बाद आरवीएनएल ने क्या किया, एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये हम तब रीड कर रहे हैं टेप को व्हेन आई एम seeing the chart on 13th of October 2022, the same analysis I would not have been doing अगर मैं इसी चार्ट को ना 11 मार्च को देख रहा होता, ठीक है। तो प्लीज़ जैसे हम चार्ट एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, और एस्ट्रोलॉजी में भी ये होता है कि मतलब भूतकाल अपना थोड़ा देख के चलना चाहिए कि हम किस परिस्थिति में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ गलत नहीं है, बट कई बार हमारी अप्रोच गलत होती है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सुधारने की बहुत ज़रूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अ टूल टू प्रिडिक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसको प्रिडिक्शन के लिए बिल्कुल यूज नहीं करना, इसको रीडिंग के लिए यूज करना है। वी आर रीडिंग द टेप एवरी डे, कोई भी चार्ट अगर हमें रीड करना है तो उसको उस दिन उसकी जो परिस्थिति है उसके ऊपर बस उस बायसनेस के साथ देखिए, ना कि उसके प्रीवियस बायसनेस के साथ, ना कि ये सोचिए कि उसके अंदर कुछ ऐसा बिल्डअप हो जाएगा कि ये सब कुछ चेंज हो जाएगा और ये तो फेक है, ठीक है, किसी ऑपरेटर का गेम है, ये सब नहीं सोचना आपको। फर्स्ट आरवीएनएल का जो मैं अब आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि मैं जब 2022 में अक्टूबर के महीने में अगर इसको रीड करता या नवंबर के अगस्त के महीने में भी रीड करता तो मैं कैसे रीड करता, ठीक है, बट नॉट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ February 2022, ठीक है। सो अभी आरवीएनएल काफ़ी ज़्यादा डीपली गिरा है और काफ़ी अच्छी सप्लाई दिख रही है मुझे, तो आई विल जस्ट लुक एट इट कि अभी भी बहुत लूज है स्टॉक। अगेन आई हैव यूज द वर्ड लूज। लूज क्या होता है, एनीथिंग विच इज टाइट, तो लूज का एक अपोजिट वर्ड होता है टाइट, ठीक है। अब लूज क्या होता है, लूज होता है ढीला। ढीला क्यों होता है कोई चीज, कोई भी स्टॉक लूज क्यों होता है, जब उसके अंदर किसी इंस्टीट्यूशनल का पार्टिसिपेशन नहीं होता, ठीक है। जनरल टर्म्स में बोलता हूँ, अगर आपके पास, ठीक है, आप छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसको साइकिल चलाने दीजिए, अगर उसके पीछे 2 चीज सपोर्ट नहीं लगे होंगे तो वो साइकिल कैसे चलाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि हम तो बड़े भी हो तो फिर तो हम 2 साइकिल पे भी चला लेते हैं, लेकिन आपके पास एक बहुत, आप भी बचपन से सीखे होंगे, जब आप साइकिल बहुत टेढ़ी मेढ़ी चला के ऐसे गिर जाते होंगे विदाउट सपोर्ट, ठीक है। तो जब वो इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट होता है ना, दैट इंस्टीट्यूशन विल कम। इंस्टीट्यूशन आर नॉट बाइंग बिकॉज ऑफ कि वो टेक्निकल पे कोई एक किसी ने हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी है इस वजह से वहाँ पे बॉटम बन गया स्टॉक का, या फिर वहाँ पे स्टॉक का सपोर्ट है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग वैल्यूज, सो वो वैल्यू पॉइंट्स टेक्निकल एनालिसिस आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, कि वो वैल्यू पॉइंट्स क्या है, और वो वैल्यू पॉइंट्स कैसे कंफर्म होते हैं व्हेन द इंस्टीट्यूशन शो दोज कमिटमेंट्स ओवर दोज वैल्यू पॉइंट्स, ठीक है। ओवर द पीरियड जब वो वैल्यू पॉइंट्स पे आके बाय करता रहता है, अगेन आई एम टेलिंग बाय करता रहता है, यानी कि कोई भी एक्यूमुलेशन आपके 2-3 दिन में खत्म नहीं हो जाएगा, it will take time, so you have to read the chart, you have to read the tape
ओवर द पीरियड ऑफ दिस कोर्स की वो एक्यूमुलेशन कैसे करी है उसने, उसका साइकोलॉजी को समझिए कि अगर वो लूज है तो इसका मतलब अभी इंस्टीट्यूशन का उसमें हाथ ही नहीं लगा, इंस्टीट्यूशन अभी भी उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत सारे लोग अभी नहीं आए हैं कि उसके अंदर एक कमिटमेंट दिखा सके, तो अभी वो लूज रहेगा, कोई सपोर्ट ही नहीं है, कहीं भी आगे बांगे तरीके से जा रहा है, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कहीं भी घूम रहा है. बट इफ यू लुक एट द चार्ट्स, जुलाई के बाद क्या होता है स्टॉक के अंदर, 7 जुलाई 2022 के अंदर स्टॉक इतना शांत क्यों हो जाता है अचानक से? उसका शांत होना ही हमारे लिए एक पहला प्रूफ है कि इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल एक्टिव हो चुके हैं. ठीक है, तो मैं एक चीज नहीं बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ वॉल्यूम से ही नहीं पता चलता हमें कि स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी चालू है, स्टॉक के बिहेवियर से भी पता चलेगा आपको बिफोर द ब्रेकआउट कि उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी चालू है. यानी द प्राइस और द एक्शन, द वे प्राइस इज मूविंग बिफोर द ब्रेकआउट एंड आफ्टर द ब्रेकआउट टू is itself also a significant mark of a institutional presence. ठीक है, सो वो जो इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके वॉल्यूम से नहीं पता चलेंगे कि हाँ भाई बहुत बड़ी वॉल्यूम में बाइंग हुई है इसलिए इंस्टीट्यूशंस है. मे बी वो इंस्टीट्यूशंस शायद से पहले आ गए थे, ये जो वॉल्यूम में बाइंग हुई थी, इस वॉल्यूम के बाद मेरे पास स्टॉक रडार में आया है. ठीक है, बट उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं दिखाया, बट दे रियली बिकम एक्टिव. शायद से उस वक्त वो फिर भी बहुत ज्यादा लूज कर रहे थे स्टॉक को, उसके अंदर बहुत सारे सेलर्स होंगे. ठीक है, बहुत सारे बायर्स हैं, तो वो वैल्यू पॉइंट्स डेवलप नहीं हो पा रहे. ठीक है, अभी भी सप्लाई होगी बेस के अंदर, तो दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग दो सप्लायर्स. कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट देके ऊपर क्यों जाता है? आपके और मेरे लिए तो नहीं जाता. उससे पहले वो इतना शांत क्यों रहता है? उसके अंदर इतना बड़ा एक्यूमुलेशन होता क्यों है? ताकि जब वो ऊपर जाए तो उसके अंदर अननेसेसरी सप्लायर्स ना आए, एक ईज ऑफ मूवमेंट हो आफ्टर द ब्रेकआउट. जो बिग विनर है, जो बिग इंस्टीट्यूशन है या फिर जो भी बड़ा एक्यूमुलेटर है, वो चाहता है कि आफ्टर जब मेरा एक्यूमुलेशन हो जाए ना, तो ये चिंटू मिंटू पिंटू आके ना मेरे को माल ना चिपका के जाए यार. मतलब कि कोई भी ना, मैक्सिमम वो चाहता है कि सप्लाई एब्जॉर्ब कर लूं मैं. ठीक है, उसके बाद मैं स्टॉक को बड़े प्यार से जिधर लेके जाना चाहता हूँ आराम से लेके जा सकूं, एक साइकिल बाय साइकिल. ठीक है, साइकिल बाय साइकिल मतलब, साइकिल बाय साइकिल का मतलब होता है कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जो होती है वो कभी भी ना वेग नहीं होती, वो हमेशा एक पैटर्न में चलती हैं. दैट इज वाई यू विल लुक देयर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स जो आइज को हमें दिखते हैं, बट हमें वो पैटर्न से नहीं समझना कि स्टॉक में क्या होने वाला है, हमें वो लीनियरिटी से समझना है. लीनियर्स क्या होते हैं? एक लीनियर मूव होता है, आंखों को ना पता चल जाता है कि ये देयर इज सम ब्यूटी इन द चार्ट, देयर इज सम लीनियरिटी. लीनियरिटी मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी चार्ट में, जब आप इन सारे प्रीवियस विनर्स को स्टडी करेंगे, पास्ट 6 मंथ के ही विनर्स को अगर आप स्टडी करेंगे, ऑल्दो इफ यू वांट टू गो फॉर अ डीप डाइव, गो फॉर अ 15 ईयर विनर जो मैंने किया था पिछले 4 महीने पहले. ठीक है, इट टेक टाइम, डेफिनेटली 2-3 महीने लगेंगे आपको, बट करिए, 15 साल के विनर्स को पढ़िए एक बार. ठीक है, सो दिस इज अबाउट टेक्निकल एनालिसिस. आई एम टेलिंग कि हाउ टू पिक विनिंग स्टॉक्स. पिकिंग द विनिंग स्टॉक इज नॉट अ साइंस कि मैंने आपको लिख के दे दिया कि 25% ही स्टॉक करेक्ट होना चाहिए और फिर स्टॉक के अंदर इतना ही कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए और फिर ये होना चाहिए और फिर वो होना चाहिए. द बेस्ट थिंग अबाउट पिकिंग अ विनिंग स्टॉक इज द थिंग कि वो जो स्टॉक आपके बैड डेज के अंदर क्या कर रहा था. ठीक है, व्हेन द स्टॉक, व्हेन द जनरल मार्केट वाज इन अ वेरी बैड शेप, व्हाट इज दैट स्टॉक वाज डूइंग. तो वो स्टॉक क्या कर रहा था? व्हाइल द शारदा क्रॉप वाज जस्ट consolidating for a long time and the market was making higher highs, definitely that's not a leader for me ना. मैं तो उसको कभी पिक भी नहीं करूंगा उस मार्केट में. बट once the market start falling and this stock has been giving a breakout, definitely it's a relative strength for me, I might look at it. ठीक है, मैं तो देखूंगा कि ये हाइस के पास क्यों आके रुका हुआ है स्टॉक, क्या रीजन है भाई, मार्केट तो बिल्कुल स्टैग्नेंट है, कुछ कर ही नहीं रहा. कुड दिस बी अ विनर, लेट मी सी. सो अगर उसके अंदर वो कमिटमेंट आती है बाइंग की, I will look at it. Maybe I will buy it in the continuation phase, or maybe I'll try it before the big breakout, or just try the first base breakout. ठीक है, तो ये सब चीजें जो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ, बेस ब्रेकआउट स्टेजेस, accumulation, distribution, loose, tight, all these things are in books. Go read them and train your eyes for linearity. अगर प्राइस एक्शन को आप देख रहे हो, किसी भी तरह की अगर आप स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हो, तो उनके अंदर लीनियर मूव्स को देखो आप. स्टॉक के अंदर एक लीनियरिटी होनी चाहिए विद द फॉल ऑल्सो एंड विद द राइज ऑल्सो. ठीक है, कुछ भी अगर लीनियर नहीं है तो वो आपके रडार से भी दूर रहना चाहिए, कभी उसको देखो भी मत. ठीक है, हग ओनली लीनियर स्टॉक्स. ठीक है, एंड अवॉइड ऑल दिस बैड स्टॉक्स.
Go and build a belief over this system. Go and study the previous winners. See the charts, what they were doing. Were they continuously bringing you higher highs on the charts? क्या stocks के अंदर higher highs बन रहे थे before the breakout? There is a common pattern. This is what I have seen कि बहुत सारे stocks के अंदर before द ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म बेस में हायर हाइज बनने लगते हैं, यानी स्टॉक के अंदर जो न्यू लोज बन रहे हैं वो कंटिन्यूसली हायर लोज बन रहे हैं, सॉरी हायर लाइज, अगेन अगेन आई एम टेलिंग हायर हाइज बन रहे हैं, सॉरी हायर लोज बन रहे हैं, कंटिन्यूसली हायर लोज फॉर्म हो रहा है स्टॉक के अंदर, यानी जो नया लो बना रहा है स्टॉक, यानी गिरावट तो हो रही है बिकॉज मार्केट इज फॉलिंग, मार्केट इज नॉट, और मे बी द स्टॉक इज ऑल्सो इन द एक्यूमुलेशन फेज, बट वो जो गिरावट है वो प्रीवियस लो के कट नहीं कर रही है, वो उससे थोड़ा सा पहले आ रही है, यानी वहां पे मुझे क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वहां पे मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये जो बायर था ना, जो प्रीवियस बायर था, जो एक पर्टिकुलर प्राइस देने के लिए तैयार था, अब वो बोल रहा है कि यार आई थिंक the news might get released into the market very early, so I might not buy this stock now. I will not wait the stock कि seller इसको और नीचे लेके आए तब मैं इसको खरीदूं. I will buy little early also. So maybe previous जो लो लगा था वो 40 रुपए का लगा है, इस बार स्टॉक 50 रुपए पे ही बॉटम बना रहा है और ऊपर जा रहा है वापस से. ठीक है, सो अब वो जो आपका शिफ्ट होता जा रहा है ना बाइंग जोन, उसको आप देख रहे हो तो उससे आपको पता चलेगा कंटिन्यूसली हायर लो पैटर्न बन रहा है. इन द आरवीएनएल इफ यू जस्ट लुक एट कि जो फर्स्ट लो बना है वो वहां से गिरावट के बाद ऑलमोस्ट एक करेक्शन फेज के बाद स्टॉक वाज कॉन्टिन्यूसली फॉर्मिंग अ न्यू लो टिल 23rd ऑफ February. ठीक है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है कि एक स्टॉक मार्केट ऑलरेडी फॉलन तो स्टॉक भी गिरेंगी. ठीक है, जनरल मार्केट पार्टिसिपेशन 80% ऑफ द स्टॉक्स विल फॉलो द जनरल मार्केट. ठीक है, इसीलिए हमारे पोर्टफोलियोज नहीं बढ़ते जब हम फंडामेंटल इन्वेस्टर्स होते हैं, एज अ प्योर फंडामेंटल का जो सिर्फ बाय एंड होल्ड पे चल रहा है, जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, सिर्फ बिजनेस स्टडीज कर रहा है. ठीक है, अच्छी बात है, दैट इज ऑल्सो गुड अप्रोच, मे बी दैट वर्क्स, मेरे लिए नहीं काम किया. ठीक है, सो मार्केट किस गिरावट के साथ हमारे आरवीएनएल ने एक नया लो बनाया. ठीक है, अब उस लो के बाद मार्केट कॉन्टिन्यूसली फॉर्मिंग न्यू लोज, बट आरवीएनएल क्या उसने न्यू लोज बनाए चार्ट के अंदर? नहीं. एक बार डीप मार्केट करेक्शन आया था तो उसके अंदर शायद से उसने अपना 12 मई वाला जो लो था उसको ब्रीच करके 21 जून वाले दिन थोड़ा सा एक लोअर लो बनाया, बट उसके बाद उसने कंटिन्यू नहीं किया उस लो को, इमीडिएटली नेक्स्ट डे बाइंग आ गया एंड वी कैन एक्चुअली रीड इट एज अ शेकआउट डे. ठीक है, और वहां से स्टॉक बहुत ज़्यादा टाइट होता जा रहा है, टाइट होता जा रहा है, और उसके बाद एक वेरी लीनियर मूव आ रहे हैं स्टॉक के अंदर. लीनियर मूव से मतलब मेरा है टाइट मूव, टाइट मूव से मेरा मतलब है कि स्टॉक की जो रेंज है हाइज और लोज की वो बहुत छोटी होती जा रही है. ठीक है, जो उससे प्रीवियस डेज में शायद से बहुत ज़्यादा थी, 20 से 30%, 40% की रेंज थी हाइज और लॉज के बीच में, जो अभी सिर्फ 2-3%, 5-7% की रह गई है, या 10-12% की रह गई है. ठीक है, सो वो जब अपने हाइज के पास पहुंचता है in a market where market is continuously forming a new low and the stock has already started forming higher lows. ठीक है, it is not printing new lows in the chart and getting really squeezed or really tight, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि this stock is something on, is really on in this name. Then now let that stock prove you, अभी वो तो बॉटम में है, let that stock prove you, let it come near the highs at least, so that कि जब वो अपने बिल्कुल सभी के सभी सप्लाई जोन से बाहर निकल जाए, मेरा बाइंग वहां पे होना चाहिए जहां पे ना मैक्सिमम सप्लाई इज ऑलरेडी अब्सॉर्ब्ड बाय द बायर्स. मेरा एक बायस है, बायस नहीं कहूंगा बट कि एक मेरा लॉजिक है इसके पीछे कि मेरे पैसों से ना बेस नहीं बनना चाहिए. इट्स नॉट ओनली माई लॉजिक, मोस्ट ऑफ माई मेंटर्स लॉजिक फ्रॉम वेयर आई हैव लर्नड कि मेरे पैसे से स्टॉक के अंदर एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, स्टॉक के अंदर बेस नहीं बनना चाहिए. एज ए स्विंग ट्रेडर मेरा होल सोल एम यही है कि मेरे पैसे से स्टॉक के अंदर बेस ना बने बस, यानी मेरा पैसा जाम ना हो जाए उस बेसिंग पीरियड में, क्योंकि आई डोंट नो कि वो बायर जो है वो कितने दिनों तक अपने एक्यूमुलेशन करेगा. यू नेवर नो, बट वंस दैट 80% सप्लाई इज अब्जॉर्व, देन यू नो कि ओके ठीक है 80% सप्लाई अब्जॉर्व हो चुकी है, अब तो उसके पास कोई चारा नहीं है बल्कि स्टॉक को और ऊपर लेके जाने के लिए, टू फाइंड फर्दर लिक्विडिटी और टू टेक द प्राइस अप. तो यहाँ पे बात आती है जो हम अलग अलग कंसेप्ट भी पढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, इनसाइड बार, टाइटनेस. ठीक है, ये सब क्यों बनता है? ठीक है, शारदा क्रॉप के ही अगर हम एग्जांपल लेंगे कि शारदा क्रॉप के अंदर वीकली चार्ट आप ओपन करें, SHARDA,
शारदा क्रॉप केम के अंदर जस्ट नियर द हाइज 21 जनवरी तक, आई थिंक 13 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक स्टॉक के अंदर एक बहुत ही टाइट मूव है, ठीक है, बहुत ही टाइट रेंज है। बट क्या वो टाइट रेंज सिर्फ इन्हीं दो हफ्तों में ही हुई है? नहीं, उससे पहले ही शायद से जब ये वॉल्यूम्स आए ना 24 दिसंबर से, तो एक्टिविटी, रियल एक्टिविटी उसी दिन अप हो गई है, ठीक है। अगर आपको मैं इस दिन वॉल्यूम्स दिखाऊं तो 24 दिसंबर को 1.91 मिलियन बाइंग हुई थी शारदा क्रॉप के अंदर, एंड दैट डे द स्टॉक हैज एक्चुअली प्रिंटेड अ हायर लो आल्सो, ठीक है। अपने प्रीवियसली 2 लॉस से बहुत ऊपर था वो, 2 या 3 लॉस से बहुत ऊपर था वो स्टॉक, यानी जो उसका लॉ था 19 अक्टूबर का, ठीक है, वो लो था। और मैं बहुत सारी चीजें ना अभी जो आप लोगों को मैं सिर्फ वॉइस के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। आई कुड हैव इवन लाइक इसको और अच्छे से समझा सकता था इफ आई कुड शो यू द चार्ट रियल इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, ठीक है, कि हाउ आई एम लुकिंग एट इट। 19 अक्टूबर को जो इसका लो था वो था 232 रुपए शारदा क्रॉप केम का। सो कॉन्टिन्यूसली अगर आप देखोगे 15 अक्टूबर 19 अक्टूबर 2020 को या 16 अक्टूबर 2020 है, ओके, 16 अक्टूबर 2020 को इसका लो है 231 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर लो बनता है ऑलमोस्ट यहाँ पे 22 दिसंबर को थोड़ा हाई 252 रुपए। सो फ्रॉम 232 252 पे आ गया स्टॉक। अभी फिर उसके बाद 22 अप्रैल 2021 को 273 पे आ गया, यानी 273 पे जा रहा है स्टॉक, ठीक है। फिर 288 के आसपास आ गया लो इसका, एंड देन फ्रॉम देयर यू आर सीइंग कि 310 है ऑलमोस्ट इसका लो। सो व्हाट इज दिस रिजेंबलिंग? क्या सिर्फ एक हायर लो बोल दिया तो इसका मतलब कुछ भी? इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो समझने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द प्राइस एक्शन एंड व्हाइल पिकिंग दोज विनिंग स्टॉक, टू अंडरस्टैंड कि उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्या कैरेक्टर के साथ चल रहा है वो स्टॉक। यहाँ पे बायर का कैरेक्टर क्या दिख रहा है आपको? बायर का कैरेक्टर दिख रहा है कि पहले वो 237 पे बाय करने के लिए रेडी था, ठीक है। देन ही रेज द प्राइस, उसको वहां पे मिल गए जितने सेलर्स मिलने थे, फर्दर सेलर्स आर नॉट अवेलेबल एट दैट प्राइस, सो ही रेज्ड हिज प्राइस, ही इज टेलिंग। और मे बी कि उसने सोचा कि यार ठीक है अब 237 पे तो जो हो गया था हो गया, आई थिंक अब मेरे को थोड़ा अपना गेम पिकअप करना पड़ेगा, थोड़ा प्राइस बढ़ाते हैं, आई थिंक द डेज आर वेरी नियर। जो उसका मेन न्यूज़ है वो अर्निंग्स, आई थिंक उसका ट्रिगर था जब वो भागा था, तो उसका न्यूज़ है बहुत जल्दी आने वाला है, मेरे को जल्दी जल्दी एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। देन ही रेज द प्राइस, तो उसने 240 पे लेके गया, 260 70 80 पे लेके गया, 300 के आसपास लेके गया फिर। तो इस चारों फेज में आप देख रहे हो जो 4 लोज प्रिंट हुए चार्ट के अंदर, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिला है? सिंपल एक चीज देखने को मिल रही है, अर्जेंसी, कि उसके अंदर धीरे 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 अर्जेंसी बढ़ती जा रही है। व्हाट अर्जेंसी मीन्स, कि अर्जेंसी से यही पता चलता है कि हाँ भाई अब इसके अंदर ब्रेकआउट आने ही वाला है, ठीक है। सो वो आने ही वाला फेज क्या है? वो आने ही वाला फेज वो है कि जब वो स्टॉक के अंदर 80% सप्लाई अब्जॉर्ब हो चुकी हो और तो स्टॉक प्राइस इज जस्ट ट्रेडिंग नियर द हाइज विद इन द 10% और 20% रेंजेस के अंदर अंदर, विच डीपली 20% भी नहीं होना चाहिए बट नियर द हाइज होना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि विद इन द 10% ऑफ, जब आप बहुत ही नए हो तो आप विद इन द 10% ऑफ 52 वीक हाई के अंदर ही जब आपको मिले स्टॉक तो आप उसको देखो, ठीक है। और वहां पे ही आपको एनालाइज करना है व्हाइल रीडिंग द टेप ऑन दैट डे एक्चुअली, कि जब वो अपने नियर द हाई से, तब आप ये सारी कहानी पढ़ोगे, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या हुआ है, व्हाई आई हैव टू लुक एट दिस स्टॉक। और ये सब कहानी पढ़ने में अभी आपको लग रहा होगा बहुत टाइम लगेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा, बट क्या आपको कार चलाने में भी ऐसा नहीं लगता था कि यार मैं गियर भी शिफ्ट कर लूँ, रियर व्यू में भी देखता रहूँ, हैंडल भी कैसे संभाल लूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे अंदाजा भी लगाना है कि साइड में कुछ है तो नहीं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ दिख तो नहीं रहा है, ऐसा लगता था ना। बट अभी तो जब जिनको कार चलानी आ गई है, 5-6 महीने सीख के उनको फिर कई कई सालों से चला रहे हैं, अब तो कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं लगती, ऐसा तो नहीं लगता यार बहुत मेहनत का काम है। सिमिलरली ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मुझे देखने में एक दिन में शायद से मैं 200 चार्ट 400 चार्ट्स भी देख सकता हूँ आराम से, ठीक है, उसमें से मुझे फटाफट मिल जाते हैं कि हाँ क्या है। तो इनिशियल डेज में आपको 1000 चार्ट्स देखने की बिल्डअप करनी है हैबिट, कि एटलीस्ट 1000 चार्ट्स आप हर वीक देखते रहो, ठीक है। थोड़ा उससे आपको एक, आपकी आईज ट्रेन हो जाएंगी, ठीक है, आंखों को ट्रेन करना होता है, वो आंखें जब ट्रेन हो जाती है ना तो आपको पिकअप होने लगता है चीज़ें।
ठीक है। और मोस्ट ऑफ द थिंग इज कि जो आपकी जो मेन गाइडेंस बनेगी, जो गाइडेंस कोर्स बनेगा, वो आपकी लर्निंग्स एंड नोट्स बनेंगे जब आप बनाओगे अपने प्रीवियस विनर्स को स्टडी करके। हाउ टू पिक अ विन स्टॉक इज टू रीड अबाउट द प्रीवियस विनर्स। ठीक है, एक सिंपल सा आंसर है इसका। इट्स नॉट अ स्कैम हाई गाइस। ठीक है, जो बता रहा हूँ वो यही है कि आपको प्रीवियस विनर्स को इसी तरह से स्टडी करना है, द वे आई एम शोइंग यू द एनालिसिस ऑफ शारदा क्रॉपकेम और आरवीएनएल, कि स्टॉक्स के अंदर कॉन्टिन्यूसली हायर लॉस बन रहे हैं। वहां से ही आपको पता चल रहा है कि हाँ, पर्टिकुलर टाइम के अंदर अब धीरे धीरे इन बायर्स की अर्जेंसी बढ़ रही है। एंड नाउ आई थिंक दिस इज द प्लेस वेयर देर इज अ वेरी लिटिल सप्लाई लेफ्ट एंड अ लिटिल डिमांड कैन टेक इट अप। सो मुझे उस सप्लाई जोन में तो नहीं खरीदना, बट जब वो डिमांड आएगा एंड द स्टॉक इज जस्ट ब्रेकिंग आउट, आई विल एंटर इट, बिकॉज आई एम जस्ट स्टडिंग दिस चार्ट एवरी डे। ठीक है, मैं हर रोज स्टॉक्स की रिसर्च कर रहा हूँ। हर रोज स्टॉक रिसर्च का मतलब ये नहीं कि मैं उसके फंडामेंटल्स पढ़ रहा हूँ, बल्कि हर रोज चार्ट की एनालिसिस कर रहा हूँ। और चार्ट एनालिसिस इज तपस्या, तपस्या की तरह उसको सोचो। ठीक है, ऐसे मत सोचो आप लोग कि मतलब बस हाँ भाई कैजुअली लेके चले गए। जो चीज़ लाइफ में कैजुअल लेगा उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे आप। जो भी आप चीज़ों को लाइटली लोगे नहीं होंगे। सक्सेसफुल का एक ही मंत्र है, डू वट एवर इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल। अगर मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होना है तो कुछ भी करो। मैंने भी कुछ भी किया। ठीक है, आज टुडेज माई एज इज जस्ट 22। माइट बी यू माइट सीम कि मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लग रहा है या फिर इस तरह से बात करूँ, जस्ट 22 ईयर्स, 3.5 साल हुए, उससे मैटर नहीं है। लेकिन मैंने कितने घंटे दिए मार्केट को, शायद से मैं जो 10 साल से ट्रेड कर रहा हूँ उनसे ज़्यादा घंटे दे चुका हूँ मार्केट को। इट्स बिकम माई पैशन, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। ठीक है, सो ये पैशन लेके आइए आप अपने अंदर सीखने का। ठीक है, डोंट लर्न थिंग्स टू प्रूव देम रॉन्ग। कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश जब करें तो उसको गलत प्रूव करने के लिए ना सीखें, बल्कि सीखने की कोशिश करें तो इस नज़रिए से सीखें कि हाँ इसके अंदर क्या अच्छा हो सकता है और इससे और क्या इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ठीक है, सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड गाइज। ठीक है, सो मैंने अभी तक आपको सारी एनालिसिस समझा दी अपनी, जितना मैं समझा सकता था फ्रॉम माई साइड। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो दैट विल बी वेरी ग्रेट। लास्ट 15 मिनट्स हैं तो क्वेश्चंस लेते हैं। सो प्रिंस भाई, दिस इज दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। That was an excellent explanation. That's recorded. You can read it. Let's give one speaker request. सो एनी क्वेश्चंस, किसी भी स्टॉक से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हैं तो वो मेरा जो भी जवाब होगा वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, दिस इज जस्ट पर्सनल माई व्यू। ठीक है, तो गाइज यू कैन आस्क इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग। Vaibhav, you can unmute and ask. Vaibhav, you can unmute and ask. Hello, हाय वैभव। am I audible, Kundan? Bhai, यस वैभव भाई, यू आर ऑडिबल। हाउ आर यू? I'm fine. How are you? आई एम रियली फाइन। आस्क, क्या पूछ रहे हैं भाई? Like, it is not a basically a stock specific question. हम्म Okay, few days back I bought Finolex cables. हम्म ओके Like it made a high of 570 on 21st of November, हम्म and I bought it near 29th of November at 569. हम्म So the next day it came down and take my stop loss हम्म of like previous day low candle. हम्म लो यूएसडे लो। तो लाइक हाउ कैन आई, मतलब मैं कैसे रोक सकता हूँ इसको? सी, अगर कोई चीज़ आपकी स्टॉप लॉस ले रहा है और आपको लगता है कि उस पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस गया है, उसको रोकने का सिंपल एक ही रीजन है, मतलब कि रोकने की कोशिश ही मत करो। क्यों क्यों रोकना है आपको? आपका क्या ही मतलब लेके चला जाएगा अगर वो स्टॉप लॉस चला गया तो? इट इज जस्ट मियरली फ्यू परसेंटेज, मे बी नॉट इवन 0.5% ऑफ योर पोर्टफोलियो। ठीक है, तो एक दो स्टॉप लॉस अगर इस तरह से जाते हैं तो उससे लर्निंग क्या हो सकती है आपकी कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर एंट्रीज, कि उस एंट्री के अंदर मेरी क्या कमी थी या उस ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर क्या कमी थी। मे बी आप जब बाय कर रहे हो, आपने एक बार मुझे फिर से डेट बताओ कि आपने जो जिस दिन बाइंग एंट्री डेट क्या था? ओके, 21st ऑफ नवंबर को 570 का हाई लगा, देन आई टेकन एंट्री ऑन 29th ऑफ नवंबर एट 569. देखो यही तो बात है। हाँ ठीक है, अब आप एक बात बताओ मुझे। ठीक है, अब इस चीज़ को जिसने यहाँ पे बाय किया है 21st ऑफ नवंबर को, आपको भी ये पता है कि द डे यू आर एंटरिंग वॉज नॉट द राइट डे एक्चुअली। ठीक है, वो वहाँ पे बहुत छोटा सा ही बेस था और बस आपने एंट्री ले लिया। मे बी अगर आप
बस ट्रेडर हो तो आपको शायद से उसी दिन समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर पुल बैक भी आ सकता है, ठीक है। हेलो, Yeah, he has been ओके muted ओके because voice ओके was ओके। echoing. सो He is listening here. एक जिसने भी 21 नवंबर को एंट्री लिया है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, फिन केबल के अंदर, ही माइट बी बुकिंग द प्रॉफिट, कि मतलब वो तो शायद से ऊपर प्रॉफिट बुक कर रहा हो, बिकॉज रिसेंटली अगर आप देखा जाए तो ये 21 दिसंबर के आसपास 2021 में एक सेलिंग पॉइंट है यहाँ से, जहाँ से स्टॉक ने गिरना शुरू किया था। सो दिस कुड बी अ सप्लाई जोन। जो लॉन्ग टर्म बायर्स हैं, जो पहले से बैठे हुए हैं होप में कि मैं तो इसी भाव पे बेचूंगा, मैं तो रुकूंगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जितना भी गिर जाए स्टॉक जब वापस से इसी भाव पे आएगा मैं काट लूंगा अपनी पोजीशन। सो इट इज टाइम फॉर देम, दे आर बुकिंग द स्टॉक प्रॉफिट ऑफ देयर स्टॉक, जो इतने समय से होल्ड करके बैठे थे, इतना बड़ा फॉल देख के बैठे थे, लाइक ऑलमोस्ट द फॉल ऑफ 40% इन द मार्केट करेक्शंस, ठीक है। सो उस समय उन लोगों ने अपनी सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो आप एंट्री ही कहाँ पे ले रहे हो, जहाँ पे ऑलरेडी एक सप्लाई रीजन है, ठीक है। एक सप्लाई रीजन के पास एंट्री लोगे तो वहां से सप्लाई आना बट नेचुरल है, कोई नई चीज नहीं है, तो इसको एक्सेप्ट करो रादर देन थिंकिंग कि ये क्यों हुआ, इसको कैसे मैं अवॉइड कर दूं। तो अवॉइड कुछ नहीं हो सकता, इंप्रूव हो सकता है कि आपको एंट्री ऐसी जगह नहीं लेनी कि यार आपने सप्लाई के पास में एंट्री ले रहे हो तो वहां से तो ऐसे इस तरह के नेचुरल रिएक्शंस लाजमी सी बात है कि आएंगे ही, ठीक है। सो इन्होंने क्या 21 नवंबर को एंट्री लिया, इन्होंने 22 नवंबर को ली? 29 नवंबर को ले रहे हैं, वो 21 नवंबर को ले नहीं रहे एंट्री। अब वहां से 21 नवंबर से सप्लाई जोन के बीच में 10-15% की दूरी है, तो फिर भी आपको एज ए स्विंग ट्रेडर कुछ प्रॉफिट आ जाएगा हाथ में। लेकिन जब आप 29 नवंबर को एंट्री लेने जा रहे हो तो आप तो जस्ट एट द सप्लाई एंट्री ले रहे हो, तो वहां पे तो सेलिंग आना बहुत मतलब नॉर्मल सी बात है कि वहां से एक नेचुरल सेलिंग आ ही सकती है, ठीक है। बट इनको कहीं से ना ये जानकारी मिली होगी हाँ, कि ब्रेकआउट हुआ तो है, ये जब होता है तो ये ब्रेकआउट थोड़ा उसमें लिया होगा। डिफिकल्ट होता है लोगों जी। के लिए, ठीक है। आई वुड से कि मतलब कि लोगों को कभी भी ब्रेकआउट ना पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे जो मिलते हैं उससे कभी नहीं लेना चाहिए, वहां से लर्निंग लो अगर कुछ लर्निंग मिल रहा है, बट डेफिनेटली दे शुड नॉट बी ब्रेकआउट बाइज और रिकमेंडेशंस किसी की आपने बाय कर ली। अपनी स्टडीज के साथ डेली जो भी आपको लग रहा है वो ट्रेड करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं। Yeah, Gopal, you can unmute and ask. हेलो भाई, मैंने आपका भी पूरा डिटेल हाय में सुना और जी मैं गोपाल भाई। काफ़ी समझा। तो आपकी जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर मैंने इन वन ऑफ द स्टॉक नोटिस किया कि फिनोलेक्स इंडस्ट्री, फिन पाइप, इट इज़ बेसिकली इसने लास्ट हाई बनाया था लास्ट ईयर 234 का, और वहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ और इसने अपना 140 टू 120 की रेंज में अपना एक बेस बनाया। जी ओके, और उसके बाद काफ़ी टाइम, करीब 5-6 महीने वहाँ पर रहा है, वहाँ पर भाई काफ़ी भाई एक्यूमुलेशन हुआ है, और इसका जो जी इसने जी ब्रेकआउट दिया वो दिया जी 145 के ऊपर, और अभी बेसिकली इसने स्टेज 2 का ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, 3 अटेम्प्ट लिए हैं लेकिन वो दे नहीं पाया क्योंकि सेलर्स बहुत हावी हैं उस पर। तो अर्ली स्टेज 2 में तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, अगर आप अपना एक डीप डाइव सेशन अपना लो और उसके अंदर आप सारे प्रीवियस विनर्स को देखो जो कैसे बड़े विनर बने, एक एक साल वाले विनर्स, नॉट 6 मंथ विनर्स, तो उसके अंदर आप मैंने देखोगे जो अर्ली स्टेज 2 होते हैं, जब कभी भी स्टॉक नया स्टेज 2 प्रिंट करने की कोशिश करता है चार्ट्स पे या कंटिन्यू करना कोशिश करता है कि एक अपने स्टेज 1 से स्टेज 2 के अंदर जाए, तो कुछ तो बहुत तेजी से ऊपर चले जाते हैं, कुछ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं इन द इनिशियल वीक्स, ठीक है, और फिर वहां से एक और बेस ऑन बेस बना के दे मूव। कीप ऑन रडार। मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ अभी, देन आई एम जस्ट टेलिंग ऑन योर वर्ड्स, बिलीविंग योर वर्ड्स कि आपने जो समझाया है उसके बेस पे। हेलो Yeah, Gopal is यस muted. यस Gopal, if हेलो you have anything, हेलो Gopal, are you done with your question? या सो व्हाट आई एम सेइंग कि जो ब्रेकआउट को उसने 2-3 अटेम्प्ट किए हैं, वहाँ पर मैंने उसके जो बुक वैल्यू है, वहाँ पर जो ऑर्डर बुक वाली है, वहाँ पर सेलर्स एक मतलब बहुत बड़ा-बड़ा चंक फेंक रहे हैं, लेकिन वो इन सिंगल ऑर्डर में वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं उसको।
मैंने कभी चार्ट रीडिंग इस तरह से नहीं करी कि मैं ऑर्डर बुक्स को देखता हूँ, जो आप जीरोधा की ऑर्डर बुक्स की बात कर रहे होंगे ना, जो जी हाँ, जी तो जी। मैं उस सब में बिलीव नहीं करता, इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना अपन को, ठीक है। ओके अगर ओके स्टॉक के अंदर सप्लाई खत्म है, सी आई कुड सी अ सेंस, मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है, अभी आई कैन जी। सी कि मतलब स्टॉक बिल्कुल अपने अभी जो प्रीवियस सप्लाई है उसके बिल्कुल पास है। लेट इट क्रॉस ब्रेकआउट ऑफ फेल का हो ही नहीं सकता जब तक वो ब्रेकआउट हुआ ना हो। मैंने एक बार ट्वीट भी किया था कि मैनी पीपल जस्ट बाय ना, ऐसा फर्स्ट 1% स्टॉक ऊपर जा रहा है जस्ट अभी इन द 9:15 और 10:15, ब्रेकआउट होने ही नहीं दिया है, उसको बोल रहे ब्रेकआउट फेल हो गया। अरे यार ब्रेकआउट होने तो पहले चार्ट पे, ठीक है, थोड़ा देखो आपकी ब्रेकआउट इसमें होना कब है, इसके अंदर जितनी रिजेक्शंस मिल रही हैं, एक्चुअल पॉइंट क्या है ब्रेकआउट का अभी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के अंदर। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो आपको लगेगा कि मैंने अभी कल टाइटनेस था उसके बाद बाय किया तो ब्रेकआउट पॉइंट है, बट रियल में सप्लाई इसने क्रॉस करनी है, तो ये इस रेंज को जब क्रॉस करेगा, आई थिंक 164.5 इज द रीजन, ठीक है। तो इसको जब क्रॉस करेगा तो एक्चुअली स्टॉक इज प्रिंटिंग इनटू स्टेज 2, और स्टेज 2 के अंदर आप अगर बाइंग करोगे ना, तो स्टेज 2 के अंदर आप एक कंटिन्यूशन बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी के टाइम पे तो अभी आपको ना बहुत ही यूनिडायरेक्शनल लग रहा है कि मतलब इस स्टॉक के अंदर, यूनिडायरेक्शनल कह रहा हूँ सॉरी, नॉन डायरेक्शनल लग रहा है क्योंकि स्टेज 1 के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे आके आप एंटिसिपेशन करना इस तरह का कि मतलब मैं बस यहाँ से सक्सेसफुल ब्रेकआउट बाय कर लूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। थोड़ा सा और टाइम दीजिए, थोड़ा सा और ब्यूटीफुल चार्ट्स को देखने की कोशिश करिए। इसके अंदर अभी भी थोड़ी सी सप्लाई लग रही है मुझे काफ़ी सारी, ठीक है। लेट इट, so अच्छा let it cross ठीक the है। supply region first of all and then wait for the continuation buying and enter there. अगर आप इंडियन टेरेन का मेरा एक ट्रेड देखोगे ठीक तो है उसके अंदर भी अंडरस्टूड। यही हुआ था। इंडियन टेरेन का भी एक ट्रेड था कि वो बहुत ही स्टेज 1 के अंदर था और स्टेज 2 बस उसने नेक्स्ट डे प्रिंट किया, बट उसके बाद अभी वो बेस ऑन बेस बना रहा है और बस लगा हुआ है ऐसे, मतलब एक साइड बेस बना के कंटिन्यूशन आएगा तो कीप इन ऑन मैंने रडार इस तरह से। मैंने लास्ट ईयर मैंने डेल्टा ग्रुप को सेम 195 के लेवल पर देखा था स्ट्रगल करते हुए, तो उन्होंने वहां से उसको ड्रॉप किया था 165 के लेवल पे लेकर के आए, देन उसको वहां से मूव करा करके सप्लाई एग्जॉस्ट करके फिर ऊपर ले गए हैं वो। ठीक है, ठीक लेट है द दैट्स सप्लाई ऑल, थैंक यू सो क्रॉस, मच। ओके। Thank you. Thank you, Gopal. Dhruv, you can unmute and ask. या हाय 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 कुंदन, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब भी मार्केट करेक्शन में होता है या एक बियर मार्केट होता है तो हर कोई कहता है कि वी शुड लुक फॉर लीडर्स एंड दैट द लीडर्स विल लीड द मार्केट इन द नेक्स्ट बुल रन. So what exactly is the definition of the a leader definition, and how to see, identify because leaders? I will not add the O'Neill's point of view of all these fundamental things, ठीक है, मैं सिर्फ प्योरली प्राइस की बात करूंगा, ठीक है। तो लीडर्स ना स्पेसिफिकली आपकी जब मार्केट लोज प्रिंट अप हो रहे होते हैं ना मार्केट के अंदर, जब मार्केट डाउनवर्ड साइकिल में होता है, तो सिमिलर टाइम में एक लीडर या तो फ्लैट जा रहा होगा, ठीक है, या हायर लोज बना रहा होगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, Okay. ठीक है, वो गिर रहा होगा। लेकिन अगर आप दीपक नाइटेड का चार्ट देखोगे, ठीक है, सो जस्ट मेकिंग दैट एक्सेप्शनल मूव, वो क्या कर रहा था 2018-19 में, जो 18 में एक्सपेशली जो गिरावट थी इतनी बड़ी, उतनी बड़ी गिरावट के अंदर स्टॉक सिर्फ और सिर्फ बेस ऑन बेस बना रहा है, पता है, एक हॉरिजॉन्टल एक बेस बना रहा है, एक रेक्टेंगुलर बेस बना रहा है, एनीथिंग यू कैन से, बट मैं उसको बोलूंगा कि एक से स्टॉक रेस्टिंग पीरियड में, यानी वो मार्केट को बोल रहा है कि हाँ तुम जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट गिर दे तो मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी डायरेक्शन में नहीं जाता, मैं कुछ दिन रेस्ट कर लेता हूँ। सो सम ऑफ दिस स्टॉक्स जो विनिंग स्टॉक्स हैं वो अपने रेस्टिंग फेज में होंगे, यानी एक हॉरिजॉन्टल बेस में, एक फ्लैट बेस में होंगे, ठीक है, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जब मार्केट गिर रहा होगा। या कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो गिरावट कम दे रहे होंगे, ठीक है, रिलेटिवली थोड़ा कम गिर रहे होंगे, एंड जब मार्केट अपना एक स्विंग लो बनाता है या फिर एक पर्टिकुलर लो बनाता है, उसी समय वो एक हायर लो बनाते हैं अपने प्रीवियस लो के, ठीक है। सो और वो जब मार्केट थोड़ा सा भी रिकवर करने की कोशिश करता है तो इन दैट रिकवरी फेज स्टॉक वो जो होता है वो थोड़ा सा जल्दी रिकवर कर जाता है मार्केट से, ठीक है। और फिर जब वो मार्केट का ओवरऑल डाउन साइकिल खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये स्टॉक मार्केट के हाइज के पहुंचने से पहले, यानी मार्केट अपने वो जिस हाई से गिरा हुआ था वहां तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ये स्टॉक जिस हाई से गिरते हुए अपना वो बेस बना रहा था ना बॉटम का, और कंटिन्यूसली लॉस, हायर लॉस प्रिंट कर रहा था, ये स्टॉक मार्केट से पहले अपने हाइज के पास पहुंच जाता है, नियर द हाइज, ठीक है। तो ये आपको बताता है कि इसके अंदर देयर इज समथिंग रियली ऑन इन दिस नेम एंड यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन इट।
Okay, so basically you are saying that we should look for stocks which has, high relative strength. डेफिनेटली हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ, बट डोंट गो बाय द जस्ट ये वर्ड्स को बस कैच करो। आप एक बार ना जाके चार्ट्स को स्टडी करो और ये जो मैंने आपको बोला ना उसको एक बार मैचअप करने का कोशिश करो, तब आपको पता चलेगा कि, क्योंकि अब मैं आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ बोल दूंगा ना तो आप जाके रिलेटिव स्ट्रेंथ की वीडियोस देखने लगोगे और फिर आप सोचोगे कि यही रिलेटिव स्ट्रेंथ है। रिलेटिव स्ट्रेंथ वो नहीं है जो सिर्फ डेफिनेशन में बताया जाता है, इसलिए मैं किसी चीज की डेफिनेशन याद ही नहीं करता मार्केट के अंदर स्पेशली। ठीक है, सो डोंट गो बाय द डेफिनेशंस ऑफ एनीथिंग। ठीक है, यू कैन आर्ग्यू एनीथिंग, मार्केट के अंदर जो भी चीज अवेलेबल है ना हर चीज के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। ठीक है, और उसको आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो बहुत बार। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पब्लिकली ऐसे अवेलेबल है ना उनके अंदर रियल एज है ही नहीं, रियल एज आपको खुद फाइंड आउट करना है। ठीक है, Okay, yes thank you. thank you for the questions. Thanks, Dhruv. So, Kundan, there are a few questions in the comments. We can quickly take to get and Yes, discuss Prince bhai. So let me Right. see. So is there any questions among the hosts? Can I take? Yeah, I read it out for you. Do you check fundamentals before taking swing trades? No, I think that has been. I avoid checking fundamentals before taking, but there are few of my friends who give me some comments. So मेरे बैक ऑफ माइंड में बस ऐसे नॉर्मल रहता है, बट उसके बेस पे मैं कभी ट्रेड को जज नहीं करता कि हाँ ये विनर बन जाएगा, ठीक है, या ये लूज कर जाएगा बिकॉज ऑफ द बैड फंडामेंटल्स। ठीक है, तो ऐसा है। आई टेक फंडामेंटल्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता फंडामेंटल से। Right. So one question is from Lavkesh. How to buy breakout? Should we wait for confirmation from volume? During the day when you are buying the breakout, you should not actually wait for the confirmation for the volume, definitely, क्योंकि इनिशियल डे में शायद से वो वॉल्यूम ना आए, बट ईओडी तक आ जाता है। ठीक है, ईओडी तक मैं डेफिनेटली आई नीड वॉल्यूम्स टू टेक माई पोजीशन होम। अगर मैं घर पे लेके जाना चाहता हूँ अपनी पोजीशन को, एक ब्रेकआउट बाई किया है तो उसके अंदर मैं एक वॉल्यूम कन्फर्मेशन बाय द ईओडी आई रियली वांट, तो ये जरूर मैं चेक करता हूँ। अदरवाइज आई विल रिड्यूस माई साइज वेरी ड्रास्टिकली। अगर कैंडल बड़ी है, ठीक है, तो मैं थोड़ा साइज फिर भी इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, बट आई विल लुक एट द वॉल्यूम्स डेफिनेटली, बट बाय द ईओडी आई विल चेक, नॉट ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द डे प्राइस इज द अल्टीमेट indicator for me. Right. So he's asking Anand, right, when to sell. Sometimes price falls below 200 DMA and then bounces back, but one would end up selling a good business. What do you do in such cases? लुक, इफ यू जस्ट गो बाय माय ट्वीट्स ऑफ लॉरस लैब्स, ठीक है, आप मेरे हैंडल पे देखोगे तो जब मैं फंडामेंटल इन्वेस्टर होता था ना तो शायद से मैं लॉरस लैब के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखता था। फिर 2021 के बाद ही, मतलब कि ऑलमोस्ट अक्टूबर के बाद, व्हेन आई जस्ट डन इनफ ऑफ माई दिस लर्निंग्स, ठीक है, और मेरे को एक अच्छा बिलीफ हुआ, देन आई कमेंटेड कि लॉरस लैब्स के अंदर एक्चुअली आज जाके ब्रेक डाउन हुआ है, बट शायद से ना 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले ही उसके अंदर ना वो फेज आ चुका था ब्रेकडाउन का, कि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है। ठीक है, सो हाउ यू विल नो बाय अंडरस्टैंडिंग कि एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखता कैसा है। तो गो एंड सी दोज फेल्ड लीडर्स। एक्चुअली एक फील्ड लीडर्स क्या होते हैं, फेल्ड कि जब एक लीडर फेल हो रहा होता है ना तो उसके अंदर बहुत सारी बाइंग्स आएंगी, स्टोरीज आएंगी वाइल इट इज फॉलिंग। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों ने मिस किया होता है, नॉट यू ओनली, बिग मनी में भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मिस कर चुके होते हैं उस बड़ी अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है, तो फेल्ड लीडर्स को जाके देखो, इंडिया के अंदर मिलेंगे आपको बहुत सारे आपको यूएस के अंदर भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप फेल्ड लीडर्स के सेटअप्स को देखो कि कैसे वो फेल हुए हैं आफ्टर अ ड्रास्टिक मूव, हाउ दे फेल्ड। ठीक है, आप बिटकॉइन को जाके देखो, तो ये सब स्टोरीज है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब रियल डाउनमेंट मूव आएगा ना तो उस वक्त सबके सब किसी को नहीं पता चलेगा, वो उससे पहले ही आपको लाइक फेलियर से पहले ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इसके अंदर फेलियर आने वाला है और ये पॉसिबल है। बट बहुत सारे लोग सोचते हैं ये पता ही नहीं चल सकता। नहीं भाई, वो आपके प्राइस एक्शन से ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर फेलियर आने वाला है। ठीक है, सो उसका एक मेथड है एक्चुअल में स्टेज 3। ठीक है, उसको स्टेज 3 को कैसे देखते हैं वो शायद से मैं अभी सिर्फ स्पेस के अंदर ना पूरा डिफाइन कर पाऊँ। सो आई विल रिकमेंड यू ऑल टू रीड द बुक कॉल्ड हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट्स एंड ऑल्सो बुक बाय सर मार्क मिनर्विनी। ठीक है, सो ये सब बुक्स आप पढ़ो तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि हाउ टू सेल द स्टॉक एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, कि किसी भी स्टॉक को ऐसे
राइट समय में कैसे सोच बेचें, ठीक है, और विनिंग स्टॉक्स को होल्ड कैसे करें, तो वो सब भी आपको पता चलेगा। Right. One question is from Vikas. How important CMO indicator is in momentum इंडिकेटर investing? अगर इन्होंने कुछ यूज किया है वर्ड, तो मैं सीएमओ, आई डोंट नो व्हाट इज सीएमओ इंडिकेटर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता, और Right. इंडिकेटर मैं So यूज we ही can नहीं skip करता it. एक्सेप्ट दिस मूविंग एवरेजेस, ठीक है। तो One question is from Tohin. He's asking how to do sector analysis that is monthly or quarterly time frame. आई डोंट गो मच अबाउट देम, ठीक है, मैं सेक्टर एनालिसिस ज़्यादा नहीं करना की कोशिश करता, बिकॉज काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो मेरे को मिलती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से होती है, और शायद से वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करता, बट वो कुछ स्टॉक्स चल रहे होते हैं, ठीक है। तो आई डोंट गो विद द बायसेस की मतलब सेक्टर ये चलने वाला है या फिर इस सेक्टर के अंदर कुछ हो रहा है, वो अपने आप प्राइस में आ जाता है अपने आप। माई वॉल्यूम ब्लास्टर इंडिकेटर्स एंड ऑल दिस थिंग्स विल ऑटोमेटिकली टेल मी। सो वॉल्यूम्स में ऑलरेडी आ जाता है पहले से ही So कि one किस किस सेक्टर के अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा है, और वो स्टॉक्स के आपके क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं, तो आपके ऑलरेडी सिस्टम के अंदर शो होने लगते हैं। तो मैं नहीं कर चाहता कि मैं सेक्टर इंडस्ट्रीज की इस तरह से एनालिसिस करूं। right. So how to analyze base? What are the points to look while analyzing a base? Are there any red flags while While analyzing a analyzing the base? base, I think the best thing you should look for is just linearity. Don't look for all these कि कितना उसका बेस का डेप्थ है, ठीक है, क्या उसका साइज रहा है गिरावट का, ये सब नहीं देखने का। देखो कि बेस के अंदर जब स्टॉक गिर रहा था तो उसके अंदर किस तरह से लो बिल्डअप हो रहे थे, वर दीज लोज वर लीनियर, क्या उसके अंदर वॉल्यूम एक्टिविटी चल रही थी, क्या उन जो फॉलोइंग डेज में कितना ज़्यादा सेलिंग हो रहा था, और जब उसके अंदर वापस से बाइंग हो रही है एंड द स्टॉक base is carving a cup kind of a bottom kind of a formation, cup bottom kind of a formation. सो उस बॉटम फॉर्मेशन में क्या स्टॉक बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, उसकी वॉल्यूम्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या उसके अंदर बाइंग पुश कैसा आ रहा है, और जो बायर्स बाय कर रहे हैं वो किस तरह से स्टॉक को आगे ऊपर तक लेके जा रहे हैं उसके नियर द हाइज, और हाउ दे आर एक्यूमुलेटिंग द सप्लाईज। तो वो सब को आपको देखना चाहिए, और ये आपको देखने से कैसे पता चलेगा, लीनियरिटी से पता चलेगा, जब उसके अंदर आपको एक आपकी आइज एक लीनियर एक्शंस को डिटेक्ट कर पाएंगी, ठीक है। सेकेंडली, बेस को लीनियर एक्शन क्या होता है एक अच्छे बेस का, वो आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस विनर्स को स्टडी करेंगे कि जो विनर्स थे वो अपने ब्रेकआउट से पहले कैसा दिखते थे, एंड हाउ यू कैन चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द चार्ट्स एंड फाइंड दीज विनर्स अर्ली, और इन सब विनर्स को आप कितनी जल्दी जल्दी ढूंढ सकते हो बिफोर दे मेक सच बिग मूव। तो वो सब आपको पता चलेगा जब प्रीवियस विनर्स को स्टडी करेंगे। Great. Next question is from Lal Kasade. He is asking how much yearly or monthly returns you expect from swing trading. सी नॉर्मली मैं अपना ऑलमोस्ट 5% स्टॉप लॉस रखता हूँ, बट दिस डेज थोड़ा और स्क्वीज हो गया, स्टॉप लॉस 3% तक भी जा रहा है, बिकॉज मार्केट में थोड़ा इतना अच्छा नहीं मिल रहा मेरे को मूव, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू कैच बिग मूव, सो लॉट ऑफ टाइम्स लाइक मैं स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रख रहा हूँ, और क्योंकि ज़्यादा मूव सस्टेन भी नहीं कर रहे हैं, फॉलो थ्रूज नहीं आ रहे, ठीक है। सो आई जस्ट कीप अ वेरी लो स्टॉप लॉस। तो ये बहुत ही वेरिएबल चलता है कि आपका इक्विटी कब कैसा चल रहा है और आपका पर्सनल जो पोर्टफोलियो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर मेरा खुद का पोर्टफोलियो होगा कि मैं किस तरह के स्टॉप लॉस उस वक्त यूज़ कर रहा हूँ और किस तरह के टारगेट को। तो मार्केट खुद बताता है, देयर इज़ नो कर्व्ड रूल्स। मतलब आप सोचो कि मैं एक रूल बता दूँ कि इसी तरह, नहीं, मार्केट विल टेल यू वेदर द मार्केट इज गिविंग यू सम दैट काइंड ऑफ मनी। अब सोचो कि मार्केट के अंदर सिर्फ 10% मूव ही सस्टेन कर रहा है और मूव एग्जॉस्ट हो जा रहा है, या तो अगर आपका सिस्टम अलाउ नहीं करता तो डोंट ट्रेड दैट मार्केट, और अदरवाइज टेक व्हाट इट इज गिविंग। डोंट एक्सपेक्ट कि अब वो वहाँ से 30% दे आपको, जब उसके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है उतनी देने की, तो कैसे दे सकता है। सो देयर इज नो रूल फॉर स्टॉप लॉसेज। एंड स्टॉप लॉसेज का एक रूल है कि हाँ, मैं फिक्स स्टॉप लॉस है और बहुत ही लो स्टॉप लॉस फॉलो करता हूँ, बट कितने रिटर्न्स पे मैं बुक करूँगा डेफिनेटली वो कोई फिक्स नहीं है, दैट इज अप टू द मार्केट। So you trail the stop losses, Yes, right? yes. So trail stop loss. I trail my So stop losses. how you I trail my stop losses with some moving averages sometimes, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग इज कि साइकोलॉजी के ऊपर है कि जो भी बायर्स हैं, दोज बायर्स शुड नॉट गिव अप, कि जिस दिन मैंने ब्रेकआउट बाय किया है द स्टॉक शुड नॉट कम बैक इनसाइड द बेस फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। इट शुड गिव सम फॉलो थ्रूज, एंड इफ सम स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू कम केम,
तो मैं थोड़ा सा लूज हो जाऊंगा स्टॉक के अंदर कि ठीक है 10 EMA 20 EMA तक इसको ट्रेल कर सकते हैं एक अच्छा फॉलो थ्रू एक अच्छा मूव के बाद, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स एड्स अप वाइल ट्रेलिंग। देयर इज नो स्पेसिफिक कि मैं सिर्फ एक इंडिकेटर को फॉलो करके ट्रेल कर रहा हूँ। So one question is from Raja is asking criteria for successful retest after breakout. जनरली आई एम नॉट अ रीटेस्ट बायर, ठीक है। आई विल कॉल इट एज अ मैथमेटिकल बाइंग, ठीक है, कि जहाँ से मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही नज़दीक हो बेस के एंटर होने से पहले। कि रीटेस्ट क्या होता है? रीटेस्ट होता है कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया अपने बेस के बाहर जाके और वापस से उस बेस को रीटेस्ट करने आ रहा है या प्राइस वापस से रीटेस्ट के नज़दीक आ गया है। सो आप एज ए रीटेस्ट बायर यही सोचते हो कि स्टॉक वापस से इस बेस के अंदर नहीं जाएगा बिकॉज इट वॉज अ ब्रेकआउट, ठीक है। अब वो ब्रेकआउट है, वो जो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा तो उसके अंदर कमिटेड बायर्स विल ऑटोमेटिकली कम। जो बायर्स जिन्होंने ब्रेकआउट किया वो उस बेस के अंदर नहीं जाने देंगे एटलीस्ट उसको। तो आपने वहाँ पे बाई किया, आई विल ऑल्सो बाई देयर दैट एट दैट प्राइस। अभी रिसेंटली मेरा BBL एक ट्रेड था, थोड़ा सा मैंने उसके अंदर बहुत कम एलोकेशन कर पाया, बट हाँ किया। वो भी एक रीटेस्ट सेटअप था, अर्जुन इज देयर। सो अर्जुन के लिए वो फंडामेंटल बाइंग है, रादर मेरे लिए वो एक टेक्निकल बाइंग हो गया था एट द रीटेस्ट पॉइंट। और वो शायद आइडिया आया मेरे को अर्जुन से, फिर मैंने उसका चार्ट देखा, मुझे उसको अच्छा लगा तो मैंने उसको रीटेस्ट के पास ही बाय करने की कोशिश किया। बट अगर आप उसके चार्ट को देखेंगे BBL के चार्ट को, तो अपने वीकली बेस को जब उसने ब्रेकआउट दिया है तो वापस से वो नीचे तो आया है, लेकिन इट वॉज अ डीप रीटेस्ट डेफिनेटली, बट वो उसके बेस के अंदर नहीं घुस गया। दोज बायर्स केम, तो वहाँ पे मेरा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था 3-3.5% से भी कम का। तो उस जगह अगर मैं बाय कर रहा हूँ उसको, तो डेफिनेटली मेरे लिए सिर्फ एक यही है कि स्टॉक शुड नॉट कम बैक इनसाइड द बेस। सो एज अ रीटेस्ट बायर यू शुड जस्ट लुक एट इट कि स्टॉक शुड नॉट कम बैक इनसाइड द बेस एंड यू शुड बाय जस्ट नियर दैट बेस। अगर वो रीटेस्ट है तो बस बेस के रीटेस्ट के नजदीक ही हो आपकी एंट्री। Great. So we have VS Akhil with us, so he can unmute and ask. Yes, good evening, all. हेलो। Hello. Yes, Good good evening, all. गुड इवनिंग। Yeah, yeah. This isn't specific any stock or something like that. I'm uh, asking about this swing trading and how it is scalable in a long run. Is it possible to do swing trading for years to come in long run? That's what my doubt is. I'm हाँ new to market. It's इनिशियली almost सो if any यू year यू and a half यू to आर it. That's एक्चुअली, it. आपकी वॉइस थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रही है। आप पूछ रहे हो कि इज इट गुड टू ट्रेड एज ए स्विंग ट्रेडर इन अ लॉन्ग रन, क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ना? Yes, yes. दिस Yeah, इज सो yeah, that's right. फॉर दैट आई विल टेल यू कि विद इन व्हेन आई वाज स्टार्टिंग मेरे पास बिल्कुल यही सेम डाउट था। मुझे बिलीव ही नहीं होता था कि आई थिंक यार ये कुछ दिनों की कहानी है, फिर उसके बाद नहीं होगा। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर ना, आप मार्केट के स्ट्रक्चर को डीपली अंडरस्टैंड करते हो तो आपको पता चलेगा कि पैसा बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा, और लॉन्ग रन में भी चलेगा। बिकॉज दिस गेम ऑफ द मार्केट इज नॉट कि आजकल में ऐसा ही चल रहा है। मार्केट 100 साल पहले भी ऐसे चलता था, आने वाले 100 साल में भी वैसे चलेगा। एक सेइंग है फ्रॉम द और ग्रेट ट्रेडर, उन्होंने एक बात कही है कि जो गेम ऑफ मार्केट इज नॉट लाइक जस्ट 2 days और लाइक 1-2 years ओल्ड, ठीक है, यहाँ 100 साल पुराना गेम है। और क्योंकि जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो 100 साल पहले भी सेम थे, ग्रीड और फियर के, और 100 साल बाद भी सेम ही रहेंगे, और पीपल लोग ऐसे ही बिहेव करेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ इनलाइन होकर अगर कोई स्ट्रक्चर के साथ आप ट्रेड कर रहे हो तो आप हमेशा वो पैसा बना सकते हो। एंड सेकेंडली, मैंने जब ट्विटर पे आया तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला, बट द पीपल हु आई लर्न द मोस्ट वाज दोज की जो ट्विटर पे बहुत कम लिखते थे, लेकिन रियल लाइफ में वो उनके पास इतना डाटा पड़ा था, ठीक है। 5 साल पहले का एक डाटा है, एक सर है हमारे, ठीक, आई डोंट नेम देम, बट वो पिछले 7-8 साल से लगातार ट्रेड कर रहे हैं और 5 साल से उनके पास डाटा पड़ा है जिसपे वो सिर्फ निफ्टी 20 के ऊपर अपना एक मार्केट टाइमिंग मॉडल है उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, और 30% CAGR जनरेट हो रहा है उनका पिछले 5 साल से, ठीक है, सिर्फ निफ्टी 20 को ट्रेड करके, ठीक है। ही डोंट वांट टू प्रमोट इट, उससे उनको कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाना कि भाई यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि मैंने देखा जो बहुत सक्सेसफुल हैं एज ए ट्रेडर, वो लोग एक तो बहुत लोगों को सिखाना नहीं चाहते और उससे कोर्सेज नहीं बेचना चाहते, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी मेथड्स हैं और वो अच्छा पैसा बना रहे हैं उससे, ठीक है, एंड दे रियली वैल्यू देयर टाइम। सेकेंडली, जब वो डाटास आप देखते हो ना तो उससे आपको ये भी बिलीफ आता है कि हाँ जो मैंने पढ़ा है मार्केट स्ट्रक्चर्स को और जो चीज़ों को, आई थिंक दिस पीपल आर नॉट लाइंग एंड आई हैव टू फॉलो इट।
तो जब आप उसको फॉलो करने लगते हैं ना, इन द बैड साइकिल व्हेन आई कैन मेक अ गुड मनी, तब मुझे बिलीव हुआ कि तब तो अच्छे मार्केट में बहुत अच्छा करूंगा, ठीक है। सो डेफिनेटली द बिलीव विल कम व्हेन यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग, यू विल नो द थिंग्स, यू विल रीड इट, यू विल फाइंड थिंग्स, ठीक है। एंड सक्सेस तो हर जगह मिल जाएगी सर, you should be just determined to get it. Thank you. And one another thing is an advice to market recent 1.5 year, 2 years. That's it. I find it difficulty to hold a winner for a long time as it go along, and how to master that art. If you have to master the art of holding a winner, go study the previous all those big winners की how you could have holded them, how they have behaved, कि कहाँ से सेलिंग आई, किस पॉइंट पे वो रुके और कहाँ से उन्होंने सपोर्ट लिया, कितनी बार उस स्टॉक ने 50 EMA को टच किया है, ठीक है, 50 मूविंग एवरेज से कितनी बार बाइंग वापस आई है स्टॉक के अंदर, ठीक है। सो वहाँ से आप एक डाटा बिल्डअप करो एंड लुक कि हाउ अ विनर शुड बिहेव, ठीक है। एक आपके पास सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए कि ए विनर शुड बिहेव लाइक इन सर्टेन पाथ, एंड इफ दैट स्टॉक इज not following your path, definitely sell it. But if you are buying it as a perspective of something like कि बहुत लंबे समय तक होल्ड करना है, तो आप वीकली को स्टडी करो ना, आप टाइम फ्रेम ही चेंज कर दो, आप वीकली चार्ट्स को स्टडी करो और वीकली चार्ट के अंदर देखो कि स्टॉक ने कैसे बिहेव किया है, वहाँ पे बहुत कम नॉइज होता है। जस्ट फॉलो द वीकली चार्ट्स, और वीकली चार्ट्स के अंदर भी आपको ये क्लोजिंग बेसिस और ये सब चीज़ों पे बिहेव नहीं करना, ठीक है। आई एम जस्ट, क्योंकि मैं इरिटेट हूँ इस चीज़ों से सुन के कि मतलब कि इन द इनिशियल डेज ऑफ माइंड कितना टाइम वेस्ट किया था मैंने, ऑल्दो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं किया, आई वॉज लकी टू गेट इन टू टच विद वेरी गुड पीपल राइट टाइम, बट फिर भी आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वीकली चार्ट्स को स्टडी करो, आप वीकली चार्ट्स को देखो कि कैसे बिहेव करता है एक बड़ा विनर, और आपका जो विनर है उसको कैसे आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। So there is one question. What is your mindset as a swing trader in bear market? What is the What is your mindset as a swing trader in market? I didn't understand. What is my insight about this as a swing trader in the bear market? Okay. Mindset. Okay, mindset क्या है मेरा? First of all कि in the right time, at this point of time, I am not looking at buying new things. ठीक है, I am just looking at what I have made, ठीक है, उसको मैं प्रोटेक्ट कैसे कर सकता हूँ। द मोर आई कैन एबल टू प्रोटेक्ट इट, द मोर आई एम हैप्पियर, ठीक है। तो जो मैं प्रोटेक्ट अगर कर पा रहा हूँ आज के टाइम पे, तो मेरा माइंडसेट सिर्फ एक ही है कि हमें प्रोटेक्ट करना है अपने पास जो है वेल्थ, उसको लूज नहीं करना, एंड कीप ट्राइंग इन द, इफ द सिस्टम इज गिविंग अ बाय सिग्नल तो उसमें ट्राई भी करते रहना है, ठीक है। सो ये माइंडसेट है मेरा अभी इस वक्त कि भाई जो नया बनाने का ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, बट डेफिनेटली जो बनाया रखा है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। एंड सेकेंडली, अगर अपॉर्चुनिटीज लग रही हैं तो उसको ट्राई करने से भी झिझकना नहीं है, आई हैव टू कीप ट्राइंग। Right. So Vajpayee ji, you have any question from Kundan? नहीं, कुंदन से कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन मैं नहीं करना चाहूंगा। बस कुंदन, जैसे अभी आपने कहा ना कि आप मूविंग एवरेज यूज करते हैं, तो अगर लिसनर्स को थोड़ा आप बताएं कि कौन सा मूविंग एवरेज, कौन कौन से मूविंग, मतलब क्या मल्टीपल यूज करते हैं या सिंगल यूज करते हैं, और किस टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, सो दैट कि कुछ शायद इनको मैं डेली पे यूज करता हूँ, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं, डेली पर मतलब कौन सा 5 मिनट के, 5 डे का, 20 डे का, 10 डेज का, या 30 वो डिफॉल्ट बिल्कुल जो सबको पता है 10, 20, 50 एंड EMA आई यूज, डोंट डेली मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज यूज नहीं करता मैं EMAs यूज करता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, ठीक है। एंड इन ऑल दीज थिंग्स आई विल से कि स्टॉक का बिहेवियर अपने आप बताएगा कि आपको 10 यूज करना है या 20 यूज करना है, ठीक है। तो स्टॉक को थोड़ा सा, कई बार अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेल करने की सोचते हो, ठीक है, तो आपको 20 भी यूज करना चाहिए, ठीक है, एज ए स्पेसिफिकली। बट मैं फिर भी ना आपको कैसे गाइड करूं कि, बिकॉज आई एम नॉट लर्निंग थिंग्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे को सिर्फ एक लाइन को ही फॉलो करना है। मूविंग एवरेज है, बट वो मेरे लिए ये नहीं है कि एक होप नहीं है कि इस मूविंग एवरेज पे आके टच करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मेरे को उससे पहले एक बिल्डअप परसेप्शन है स्टॉक के बिहेवियर के साथ कि हाउ द स्टॉक इज बिहेविंग बिफोर दैट कमिंग टू दैट मूविंग एवरेज, ठीक है। तो वो कैंडल्स, वो वॉल्यूम्स ही आपको बताएंगी कि वेदर टू वेट फॉर 20 EMA या फिर 10 EMA पे ही कट करके निकल जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी है।
चलिए ठीक है, मतलब जो नॉर्मली यूज करते हैं, एक्चुअली देखिए ऐसा है ना, लिसनर्स है हमारे बीच में, तो थोड़ा सा फॉर द वेरी न्यू क्योंकि पीपल आई विल से कि 20 EMA को यूज करिए, ठीक है। चार्ट के अंदर जब आप बेस स्टडी कर रहे हो तो सिर्फ 50 मूविंग एवरेज रखिए, ठीक है। और अपने फिल्टर्स के अंदर ऑलरेडी डाल दीजिए कि आपके पास जो स्टॉक स्टडी करने के लिए फिल्टर आए वो स्टॉक्स ऑलरेडी सिर्फ वही हो जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो, नॉट बिलो, ठीक है। सो सिर्फ 50 मूविंग एवरेज के साथ आप अपने चार्ट्स को बेसिस की स्टडी करिए, ठीक है। और जब आप उनके अंदर ब्रेकआउट देखें और उनको ट्रेल करने की सोचें तो 20 एंड 10 का कॉम्बिनेशन भी आप यूज करो, इट्स गुड थिंग। और देखो आपकी कैसे वो बिहेव करता है 10 और 20 के ऊपर आने के बाद, बिकॉज दोज कमिटेड बायर्स क्या पता वो 10 दिन में उल्टे आ रहे हैं या फिर 20 दिन में उल्टे आ रहे हैं, बट बिफोर दैट कहीं उसके अंदर कोई कमिटेड सेलर तो नहीं है जो इतना बुरी तरह सेलिंग मार रहा है कि बस लग रहा है कि यार नहीं, इसमें तो इस सेलिंग को ऑब्जर्व करने में बायर की हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज वाई आई एम टेलिंग कि सिर्फ EMA पे वेट नहीं करते रहना, आपको वो देखना है कि कमिटेड बायर से पहले कोई बड़ा सेलर ना आ जाए, क्योंकि सेलिंग कैन कम एनी डे, इवन आफ्टर अ वेरी गुड ब्रेकआउट कमिंग आउट ऑफ द बेस, एक कभी भी सेलिंग आ सकती है, ये अपने दिमाग में रखिए। कोई ये स्पेसिफिक पॉइंट नहीं कि यहाँ पे सेलर्स नहीं है यार, खत्म है बस, वो अजम्पशन है सिर्फ एक कि यहाँ पे सेलर्स, मोस्ट ऑफ द सेलर्स हैव बीन अब्जॉर्ब, बट किसी दिन भी कुछ न्यूज रिलीज हो जाए कि आज इसकी अर्निंग्स खराब होगी, कुछ ट्रिगर हो सकता है मार्केट के अंदर किसी भी स्टॉक के अंदर, बस वहां से सेलर डेवलप हो सकता है। सो सेलिंग किसी दिन भी आ सकती है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। यस Like apart from the stop loss thing, what is the risk management in place? I mean, how you manage your risk and what are the strategies you follow so as to do that? सी आई लुक फॉर गुड बेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और गुड बेसिस के अंदर मैं ये सोचता हूँ कि मेरा लीस्ट रिस्क एंट्री हो और नॉन ऑब्वियस पॉइंट्स हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल हाईज के पास ना हो कि बस मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बस स्टॉक हाई तोड़ रहा है, स्टॉक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है और मैंने ब्रेकआउट को खरीद लिया ऊपर जाके, ठीक है। आई हैव टू ट्रैक दैट स्टॉक अर्ली, मुझे उस स्टॉक के बारे में उस ब्रेकआउट से पहले ही नॉलेज होनी चाहिए कि स्टॉक के बेस के अंदर एक्यूमुलेशन हो रही है, एंड आई हैव टू जस्ट बाय नियर द ब्रेकआउट, जस्ट नियर द प्लेस वेयर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सप्लाईज हैव बीन अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। मैक्सिमम सप्लाई हैज बीन अब्सॉर्ब्ड, नॉट एनी परसेंटेज आई डोंट वांट टू गिव, बट एक मैक्सिमम सप्लाई अब्सॉर्ब ऐसी रीजन के अंदर होना चाहिए, बिकॉज मैं अभी बहुत ही स्मॉल टर्म ट्रेडिंग नहीं यूज कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग अबाउट अ गुड पोजिशनल बायर एज ए गुड पोजिशनल ट्रेडर, जो थोड़ा स्टॉक के अंदर पोजिशन बनाता है, कुछ दिन रखता है उसके अंदर, हफ्ता 2 हफ्ता, उस परसेप्शन से बता रहा हूँ, ठीक है। So, what is the maximum time you hold your position? Like for a week or so, is the minimum Yes, time or maximum time बिकॉज for you? दीज डेज द मार्केट का जो लेंथ है वो बहुत ही छोटा हो गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिन स्विंग्स सस्टेन नहीं कर रही है, तो अभी सिर्फ 2 हफ्ता मैक्सिमम है जो मैंने रखा है, ठीक है। वो बहुत ही छोटे कुछ स्टॉक्स हैं, लाइक श्री रायलसीमा का एक बहुत छोटा पोजीशन मैंने ट्रेल किया था काफ़ी लंबे समय तक, इट वॉज समवेयर अबाउट 80% अप। आर्चिड प्लाई मैंने काफ़ी लंबा ट्रेल किया था, ठीक है। बट दिस इज इट। और एक फंडामेंटल बायस भी बता देता हूँ, मेरा एक एरर रहा था क्योंकि कितनी भी हम कर लें कोशिश, बट कहीं ना कहीं कई बार बाइसनेस आ ही जाता है। पीसी ज्वेलर का एक ब्रेकआउट मैंने बाय किया था, जो मैंने बहुत ही छोटे से गेन पे बेच दिया, ये सोच के कि यार इट वाज माय सेटअप, बेसिक बहुत अच्छा सेटअप था और मैंने इसलिए बाय भी किया था, ठीक है। बट एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे को लगा यार क्या ही कर लेगा पीसी ज्वेलर, फंडामेंटली मेरे को ऐसे मतलब एक बाइसनेस था अपने दिमाग के अंदर कि क्या ही कर लेगा, मतलब इट इज जस्ट अ स्टॉक विच इज लाइक नॉर्मली एक ज्वेलर की शॉप है, वो क्या ही हो सकता है, लेकिन उसके अंदर इतना बड़ा टर्न अराउंड आ गया, अब क्या ही कर सकते हैं ना, 200% का मूव है ऑलमोस्ट। सो दैट इज वाई से कि फंडामेंटल्स या किसी तरह का बायस लाके अपने सेटअप के अंदर नहीं डालना, दैट विल स्पॉइल द गेम फॉर यू। Right. So, Kundan, it's almost like 1.5 hours, and it was an interesting session and discussion, basically. So, any books or anything in concluding remarks you want to tell to the attendees? I would like to everybody just look at प्रदीप बोंडे's blog post, ठीक है। एक प्रदीप बोंडे सर हैं, he is trading in US markets and teaching US people actually, he is from India, and the way he taught things to people and जो चीज़ों को सिखाते हैं वो रियली माइंड ओपनिंग है। तो उनके ब्लॉग्स को देखो, उनके यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करो आप लोग। सब्सक्राइब तो मत ही करो बेशक से भाई, क्योंकि मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जाके उनकी वीडियोस को जरूर देखो, ठीक है। गो एंड लुक एट द वीडियोस, लर्न फ्रॉम देम, आई हैव ऑल्सो लर्न फ्रॉम दोज पेजेस, ठीक है। आप बुक्स पढ़ना चाहते हो तो आप हाउ टू
start with this how to trade, how to make money in stock markets by विलियम ओनील, ठीक है. एंड मार्क मिलरी सर की आप तीनों बुक्स पढ़ सकते हो, जिसमें से दो तो बिल्कुल पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है. एंड गो एंड सर्च ऑन द इंटरनेट. देन you can also read one more book which I will suggest everybody to read to learn about volumes, because volume is the only leading indicator in the markets, ठीक है. वॉल्यूम्स को जो स्टडी करेगा, जो पढ़ेगा, जो जानेगा, ठीक है, उसके पास बहुत सारे विनर्स ऑलरेडी उसके पास एडवांस में होंगे, बिकॉज ही नो द थिंग्स कि वो वॉल्यूम्स आने के बाद स्टॉक ने क्या प्राइस एक्शन किया, वो वहीं से उसके पास रडार में होगा. बिकॉज एनी इंस्टीट्यूशन इज नॉट बाइंग द ब्रेकआउट, दे आर क्रिएटिंग द ब्रेकआउट, दे आर बाइंग थिंग्स बिफोर द ब्रेकआउट्स. और वो इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट्स पहले से ही चार्ट पे मौजूद होते हैं. तो वॉल्यूम का एक बुक है, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, ठीक है, और बाय एना कॉलिन करके एक बुक है, आप जाके उनको रीड करिए. दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई कैन टेल अबाउट. सिंपल है और लोगों को लगेगा यार ये सिंपल चीज़ें कैसे काम करती हैं, बट कभी आइए ट्रेड करिए मेरे साथ, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कैसे सिंपल चीज़ें काम करती हैं. शुभम भाई हैं हमारे साथ एंड अर्जुन जी भी हैं, ठीक है. एंड शुभम भाई ने अभी रिसेंटली आई थिंक ट्रेड करना शुरू किया है. इफ़ यू कैन ऐड समथिंग यू कैन ऐड ऑल्सो. एंड Shubham, if you are free, I have sent you the request. Please join so as to make it more interactive, and we can also listen to he your can input. definitely show Who something is the other person? Just name? कि सिंपल चीज़ें कितना अच्छा काम करती हैं मार्केट के अंदर. ही कैन ऐड टू दिस पॉइंट डेफिनेटली. Yeah, I think he must be busy, or in the meantime he can join. So Kundan, it was great knowing, and I truly myself learned a lot in today's discussion, and surely I'll get in touch with you for this also. And again, there are certain questions which are stock specific, so we won't be taking those questions. We have Shubham with us. Hi Shubham. हेलो, नमस्कार कुंदन भाई. कोई नमस्कार है. बहुत कुंदन भाई नॉलेज वगैरह अच्छा शेयर कर रहे हैं. तो हाँ, ये बात तो ठीक बोली कुंदन भाई ने कि सिंपल चीजें अच्छी काम करती हैं मार्केट में, और जितना चार्ट को साफ रखेंगे उतना चीजें नजर आएंगी. जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तो सामने कांच जितना साफ रहता है उतना बढ़िया दिखता है ना, तो उसमें बहुत सारे स्टिकर लगा देंगे तो दिखेगा नहीं कुछ. तो वैसा ही चार्ट के साथ भी है, जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा. और वॉल्यूम एनालिसिस जरूर कीजिए. वॉल्यूम के लिए एक और बुक मैं बता दूंगा, सर टॉम विलियम्स की अच्छी बुक है. सर टॉम विलियम्स ने वॉल्यूम पे बहुत काम किया है. तो मास्टरिंग द मार्केट्स बाय सर टॉम विलियम्स इज अ वेरी गुड बुक टू रीड ऑन वॉल्यूम्स. और एक और बुक है उनकी, द अनडिक्लेयर्ड सीक्रेट्स दैट ड्राइव द स्टॉक मार्केट, वो भी सर टॉम विलियम्स की किताब है. तो दीज टू बुक्स आर वेरी गुड. और जो कुंदन भाई ने बताई वो भी अच्छी बुक है, तो वो आप जरूर पढ़ सकते हैं. Shubham and Kundan, I would request if you could name these books in a tweet, and so that the listeners शुभम भाई can. बहुत Because अच्छा I ट्वीट find- कर सकते हैं इसके ऊपर. आई गेस वेरी रिसेंटली ही हैज बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, एंड बिकॉज ऑफ द टाइम प्रेशर्स आई थिंक मैं बहुत ज्यादा रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ रिसेंटली, ठीक है. श्योर श्योर, मैं ट्वीट कर दूंगा. आई विल ट्वीट बुक नेम्स along with the authors in a tweet. Okay, great. Sure. So Kundan, we have one last speaker. Like Sumit is on speaker mode, so he can quickly unmute and ask question from Shubham or Kundan. Yes sir. डेफिनेटली. Good evening. I just want to know, सर ने भी नाम बताया था YouTube पे. Can you please repeat again sir? सुनने का प्रदीप बोंडे, स्टॉक बी करके उनका यूट्यूब चैनल है, स्टॉक बी, ठीक है. हाँ, वेल्थ ऑफ नॉलेज है, ठीक है. ये वेल्थ ऑफ नॉलेज है, सब कुछ देख डालो. उनका ब्लॉग पोस्ट है, सब कुछ पढ़ डालो. कुंदन भाई कुला मैगी का भी बता दो, उनका भी काफी अच्छा है. हाँ, कुला मैगी का काफ़ी अच्छा है डेफिनेटली. शुभम भाई ने जो भी बताया कुला मैगी सर का, उनका आप देखो, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे टाइमलेस सेटअप्स मिलेंगे. 3 टाइमलेस सेटअप्स दैट ही टॉक्स अबाउट, ठीक है, और काफ़ी लर्निंग्स मिलेंगी सर आपको. ओके सर, बस यही पूछना है. थैंक यू सर. Thank you, Sumit. एंड एट द एंड आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग गाइज, प्लीज. लाइफ में कभी भी ना किसी को फॉलो करना है तो उसको फॉलो करो जो आपको इंडिपेंडेंट बनाने के पीछे पड़ा हो, ठीक है. इंडिपेंडेंट बनाने के पीछे कोई नहीं पड़ता, बट डेफिनेटली आपको ये नॉलेज दे रहा हो कि जिससे आप इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है. सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन या फिर किसी के मॉडल को फॉलो करने से आप इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे. आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा,
खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉप रीडिंग बुक्स ऑल्सो। जो अंदर से ज्ञान आ रहा है ना, अंदर से जो एनालाइज करने के बाद मार्केट से आप जो खुले दिमाग से सोचते हैं तो आपको बहुत सारा ज्ञान आएगा, ठीक है। उसको लिखो और देखो कि क्या वो सही है, कितना वो सही है, ठीक है। एंड रिएक्ट ऑन दोज थिंग्स, बिल्ड योर लर्निंग्स ओवर दोज थिंग्स, ग्रो अपॉन दोज थिंग्स, ठीक है। वहाँ से और ग्रो करो आप। सब कुछ बुक्स में जो लिखा है वो सही नहीं है। कई बार जिन्होंने बुक्स में लिखा हुआ है वो बहुत सिर्फ लॉजिकल लगता है इसलिए फेमस है, ठीक है, बट वो लोग खुद ट्रेड नहीं करते उन चीज़ों से, ठीक है। मेरा कहना भी है कि हमेशा मैं कहता हूँ कि विलियम ओनिल विल नॉट ट्रेड हिज ओन मेथड्स, जो विलियम ओनिल ने बुक्स में लिखा है, बट उनकी बुक्स में जो लिखा है वो स्टार्ट लेने के लिए बहुत सही है। वो दिमाग में जो बातें उन्होंने लिखी हैं वो करने के लिए बेसिक्स बहुत ज़रूरी है ताकि आप एडवांस हो सको इन द डेज टू कम, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट टू ऐड। Very relevant message in that. So, Kundan, it was great interacting with you today, and thanks for your time. And surely we'll get in touch for another session, and maybe that time we'll work out something not on Twitter Spaces, maybe where you can share your screen, and so that the participants can benefit more from the live visuals of the charts and all. So great, and keep sharing your great knowledge. And guys, as a token of respect, if you're liking our session, please check out our handles and do give us a follow and a shout out if you are learning from our spaces. And Kundan is a hidden gem, which I won't disclose the name of the place, but he is hardly 2-3 kilometers away from my place, and I came to know about it very recently. So surely we'll be meeting in person. And again, Definitely, yeah, and the clarity of his thoughts in explaining the things related to accumulation, contraction, and whatnot, they were just brilliant. And those who missed the session initially, they can surely get back to the recording. The session is recorded, and I'll be placing this audio podcast over my YouTube channel, so that in case basically Twitter keeps the recording for 30 days, right? After that it removes, so that we can have this jam session permanently. That will be placed on my YouTube channel, and I've shared the pin tweet on this spaces for that. So if you like, there are many recorded spaces available on that channel. So yeah, that was it. So thank you, Shubham, for chipping in and sharing your knowledge. Surely our spaces is due with you as well. Lately, I contacted Saurabh, and he's busy throughout December. But surely we'll work out something, and I'll get in touch with you offline. So thank you, guys. Please share your feedback, positive, negative, whatever, and thank you for keep having in me, touch. Prince Bhai, and thank Yeah, you for coming. and Kundan, guys, All the audience is I would still say he is a very underrated channel. He has immense knowledge, and he has worked for 16, 18 hours a day. So he's sharing, great knowledge. So do check out, but also keep in mind that should be your starting point, right? Thank you again. So good night, Kundan. Good night, good Shubham, night. and thank you, Vajpayee ji. Good night, everybody, and Good night.